اس ناول کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ کے لیے حاضر ہیں، اور پھر یہ جیسے اس کے معمول کا حصہ بن گیا۔ روزانہ وہ اس راستے سے گزرتا، روز ہی وہ دوستانہ مزاج والی لڑکی سے نظر آتی۔ وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، ہر بار اسے یہ محسوس ہوتا کہ وہ لڑکی جیسے اس کی ہی منتظر ہوتی تھی۔ خاصی مستقل مزاج تھی وہ بھی، مجالے کسی دن بھی اس کے خشک رویے کا جواب اسے نظر انداز کر کے دیا ہو۔ قارب جدوں نے سمجھا شاید یہ بھی ایبٹ آباد کے خوبصورت منظر کا حصہ ہے، جب ہی اسے دھیرے دھیرے قبول کر لیا تھا کہ اچانک ایک روز وہ غائب ہو گئی۔ پورے 20 دن بعد اس روٹین میں خلل پڑا تھا، اور آپ کا حال یہ ہے کہ ذرا سی دیر میں گھبرا گئیں۔ شاید آپ کو اب تک اس بات کا یقین نہیں آیا کہ آپ کے سپوت لوٹ کر یہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہیں۔ جو عیاشیاں انہیں باپ کے توسط سے حاصل ہیں، خود کمانے لگیں، شاید سالوں میں بھی نصیب نہ ہوں۔ استہزائیہ انداز اب تیکھا ہو چلا تھا۔ صوفیہ بیگم نے تفکر سے بیٹے کی طرف دیکھا، بمشکل ضبط کرتے ہوئے کافی کے تلخ اور گرم گھونٹ لے رہا تھا۔ ناشتے کے وقت تو بخش دیا کریں اسے صفتر۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی پیارا سا ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے اگر کہہ دو۔ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کی طرف۔ صبح صادق کا وقت تھا، خوشگوار ہوا میں بہت خنکی تھی۔ جس لمحے وہ کھلے گیٹ سے باہر نکلا، دور تک سڑک سنسان پڑی نظر آئی۔ اس کالونی میں سارے مکان ہی مکینوں سے آباد تھے، مگر 8 بجے سے پہلے شاید ہی کوئی چلتا ہوا نظر آتا ہو۔ اسے آج 13 دن ہو گئے تھے مارننگ واک کرتے، مگر دور دور تک ویران سڑکوں، بڑے بڑے بنگلہ نما کاٹیجز ہی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ یوں ہی ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹہلتا آگے بڑھتا گیا۔ غالباً سردی کی شدت کے باعث لوگ گھروں سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ اسے تو عادت تھی اس وقت چہل قدمی کرنے کی۔ کبھی موڈ ہوتا تو جاگنگ بھی کر لیتا تھا۔ موسموں کی شدت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی کہ اس کے اندر چلچلاتی دھوپ کا پرتپش موسم جو ٹھہر گیا تھا۔ سیدھی سڑک کے کنارے آگے پٹل کے درختوں کی قطار دور تک چلی جا رہی تھی۔ وہ موڑ موڑ کر ڈھلوانی راستے پر چلا آیا، جس طرف زیادہ تر کاٹیجز بنے ہوئے تھے۔ اس کے قدم بے ساختہ ترمزی کاٹیج کے سامنے جا کر ٹھہر گئے۔ سو اس انداز میں بنایا ہوا باغیچہ موسم کی شدت کے باوجود سدا بہار پودوں کی ہریالی اور رنگینی دکھا رہا تھا۔ سفید لکڑی کی خوبصورت باڑ نے اس چھوٹے سے باغیچے کا احاطہ کر رکھا تھا، جس کے درمیان میں سرخ بجری کی روش سفید گیٹ تک جا کر رک جاتی تھی۔ وہ ایک ڈبل سٹوری کاٹیج تھا جسے ہر طرف سے بیلوں نے ڈھک رکھا تھا۔ لگتا تھا اس کی تزئین و آرائش میں خاصی دلچسپی کے ساتھ محنت کی گئی ہے۔ اس کی توصیف ہی نظر اوپر اٹھتی چلی گئی۔ پچھلے 12 دنوں میں وہ اس طرف ڈھلوانی راستہ پر آیا ہی نہیں تھا، اس لیے یہ منظر اس کے لیے نیا تھا۔ خوبصورت آرکیٹیکچر، قدیم و جدید فن تعمیر کا نمونہ تھا۔ اس کی نظر اٹھی تو اوپر تک اٹھتی ہی چلی گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بڑا سا مگ ہاتھ میں تھامے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو ایک دوستانہ سی مسکراہٹ اس کے احمری لبوں کا حصار کر گئی۔ ایک اجنبی لڑکی کے اس دوستانہ تبسم نے اس کے چہرے کے نقوش میں تیکھا پن بھر دیا تھا۔ مروت و اخلاق کا تقاضا نظر انداز کرتے ہوئے ایڑیوں کے بل مڑا اور تیز قدموں سے اپنے راستے ہو لیا، یہ سوچے بغیر کہ چند فٹ اونچائی پر کھڑا نسوانی وجود اس رد عمل کا کس قدر حیران رہ گیا تھا۔ کالونی کا ایک چکر مکمل کر کے قصداً دوسرے راستے سے لوٹا۔ 8:30 بج چکے تھے۔ تیزی سے پھیلتی کمزور دھوپ کی تمازت سے قدرے قابل برداشت ہوتی ہوا کو محسوس کرتا وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ ٹھیک 8:45 بجے ناشتہ ٹیبل پر لگ جانا تھا۔ کارڈین کی آستین اونچی کر کے اس نے گھڑی پہ نظر ڈالی تو قدموں میں از خود تیزی آ گئی۔ آگے قارب، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی بیٹا، آج کچھ زیادہ ہی دیر نہیں ہوگی؟ جالی والا دروازہ کھول کر سیدھا ڈائننگ روم میں آ گیا تھا۔ ممی تشویش زدہ سی اس کی طرف بڑھی تھی۔ جی، مختصر سا جواب دے کر اس نے کرسی کھینچ لی تھی۔ تمہارے لیے علاقہ نیا ہے، میں ڈر رہی تھی کہیں راستہ نہ بھول گئے ہو۔ ممی ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر لگاتے تردد سے بولی۔ اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا کہ ڈیڈی کا بولنا لازمی امر تھا۔ کمال ہے صوفیہ بیگم، آپ کو اپنے بیٹے پر اتنا بھی اعتماد نہیں۔ ڈائننگ روم کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے حسب عادت طنزیہ لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ قارب نے گہری سانس بھر کر لب بھینچ لیے۔
मम्मी अलबत्ता होंठ काटने लगी थी। हम जब आपके वली अहद की उम्र के थे मीलों अनजान रास्तों पर पैदल चला करते थे, मगर हमारी वालदा कभी आपकी तरह गेट के चक्कर नहीं लगाया करती थी, क्योंकि उन्हें हम पर एतमाद था। ख़ुद पसंद अंदाज गो कि उनका खासा था, मगर इस लम्हे मुसाबकाना लहजे ने उनके गरूर को और भी जिला बख्शी थी। कारिब की भवें तन गईं, लब खामोश थे। और आपका हाल ये है कि ज़रा सी देर में घबरा गईं। शायद आपको अब तक इस बात का यकीन नहीं आया कि आपके सपूत लौटकर यहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं। अय्याशियाँ इन्हें बाप के तवस्सुत से हासिल हैं, ख़ुद कमाने लगे तो शायद सालों में भी नसीब ना हो। इस्तेहज़ाइया अंदाज़ अब तीखा हो चला था। सोफिया बेगम ने तफक्कुर से बेटे की तरफ देखा, जो बमुश्किल ज़ब्त करते हुए कॉफ़ी के तल्ख़ और गर्म घूंट ले रहा था। नाश्ते के वक्त तो बख्श दिया करें इसे सफ्तर। शौहर के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने दबे दबे लहजे में बौजलत कहा था, जिस पर सफ्तर साहब का चिराग पा होना लाजमी था। क्या मतलब है आपका? इस वक्त नहीं तो किस वक्त मुलाकात की जा सकती है आपके लाडले से? नाश्ते की टेबल पर ही तो मुज़ाकरात होते हैं इनसे, फिर पूरा दिन गालिबन ये सुलेमानी टोपी पहन लेते हैं। उन्होंने इसे घूरा था जिसने नाश्ते से हाथ खींच लिया था। ऐसी भी बात नहीं, मुस्तकिल तो आपके साथ ऑफिस जाता है। सोफिया बेगम का दिफा जारी था। हाँ, वहाँ पहुँचकर एक बार भी मेरे पास नहीं आता। मैं बुलाऊँ तो भी बहाना। आखिर ये क्या चाहता है? मैं इसे ट्रेंड करना चाहता हूँ, बिज़नेस का रमोज समझाना चाहता हूँ, मगर ये हज़रत काबू ही नहीं आते। वहाँ ऑफिस में भी इनका यही हाल है। लोग तो यकीन नहीं करते कि मेरे बरखुरदार हैं ये। सफ्दर साहब इंतहाई जलाल में आगे थे। सफ़िया बेगम ने जवाब तलब परेशान नज़रों से इसे देखा तो इसने नज़र फेर ली। बस ये तहैया कर रखा है कि बाप को परेशान करना है। मेरी हर बात की खिलाफ वर्जी का शार बना लिया है। अब इस वक्त ट्रैक सूट में यहाँ बैठने का मकसद मुझे ज़िक पहुँचाना है। जब मैंने कह दिया कि नाश्ते से 15 मिनट पहले घर लौट आया करो ताकि चेंज कर सको, क्यों रूगर्दानी की जाती है मेरे हुक्म से? आलम तैश में वो इसे शोला बार नज़रों से घूर रहे थे। सोफिया बेगम परेशान से होकर उठ खड़ी हुई और गिलास उठा लिया। अच्छा, आप गुस्सा कंट्रोल करें प्लीज़ सफ्तर। और कारिब, तुम आइंदा अपने डैडी को शिकायत का मौका मत देना प्लीज़ बेटा। परेशान सी सोफिया बेगम हर बार की तरह आज भी इन दोनों के माबैन सालिस बनकर खड़ी थी, जिनके दरमियान गैर एलानिया जंग शायद इसके यौम पैदाइश से ही जारी थी। कारिब ज़ब्त की इंतहा पर पहुंचकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। माँ के चेहरे पर आज जाना तासुरात देखकर इसका पारा भी चढ़ गया था। बेदर्दी से कुर्सी धकेल कर बाहर जाने को कदम बढ़ाए। कारिब बेटा, नाश्ता तो कर लो। सोफिया बेगम बेख्तियार इसके पीछे लपकी थी, मगर वो अनसुनी कर गया। रहने दो सोफिया। सफदर साहब की पुरजलाल आवाज़ गूंजी, ठिठक सी गई। कारिब चला गया था। इन बाप बेटे के दरमियान अजीब सैंडविच बनकर रह गई थी। पलटकर मलूल नज़रों से शौहर की तरफ देखा, जो सारा गुस्सा एकदम भूल कर बहुत आराम से नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। चलो अब तुम भी आकर नाश्ता कर लो, खा लेगा वो भी जब भूख लगेगी इसे। अभी पेट भर कर खाने को मिलता है ना, इसके नखरे हैं। कल को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ा, अहमियत का एहसास होगा इसे। सख्त लहजे में इन्हें पुकार कर उन्होंने मुस्तकबिल का नक्शा खींचा। सोफिया बेगम दिल ही दिल में खुदा ना करे कवीरत करती अपनी कुर्सी पर आ बैठी। मगर अब भूख कहाँ थी। बेदिली से कॉफ़ी का एक घूंट भरकर उन्होंने आंखों में आई नमी बमुश्किल जज़्ब की थी। एक मलूल नज़र सफ्तर साहब पर डाली, जो कारिब का नाश्ता हराम करके इत्मीनान से खा रहे थे। गो कि ये सब आज पहली बार नहीं हुआ था। कारिब के वजूद को तो सफ्तर साहब ने कभी भी बर्दाश्त नहीं किया था, मगर न जाने क्यों आज सोफिया बेगम की आंखें नम हो गईं। शायद इसलिए कि आज ये एहसास कवी तर हो गया था कि कारिब और सफ्तर साहब के दरमियान मौजूद वो अनदेखी खलीज, जिसने आज तक दोनों की फितरी मोहब्बत को उभरने नहीं दिया था, आज भी इसी करोफर से मौजूद है। उनकी ये उम्मीद आज ख़त्म हो गई थी कि कभी वो दिन भी आएगा जब वो दोनों मिलकर बैठेंगे और हंसकर एक दूसरे से बात करेंगे। अब इस फासले को मिटाने की आस टूट गई थी। शाम को वो घर लौटा तो खिलाफ़े मामूल वो किचन के बजाय लाउंज में बैठी नजर आई। इशारे से सलाम करता आगे बढ़ने वाला था कि उन्होंने पुकार लिया, कारी बेटा यहाँ आओ, कोई काम है। संजीदा और सख्त सा लहजा था इसका। सोफिया बेगम महसूस करके आज़ुल्दा सी हो गई। चंद कदमों के फासले पर आ रुका था। नहीं, बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। बेबस से लहजे में उन्होंने जवाबन बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखा था। एक तवील सांस खींचकर इसने सफ्तर साहब के कमरे के बंद दरवाजे पर नज़र डाली और उनके पास आ बैठा।
تمہارے ڈیڈی آرام کر رہے ہیں۔ صوفیہ بیگم نے اطلاع کہا تھا۔ اس نے انہیں سادہ نظروں سے دیکھ کر ریموٹ کنٹرول اٹھا لیا۔ آج کل موسم بہت خراب ہو گیا ہے، تم زیادہ دیر گھر سے باہر مت رہا کرو، اتنی ٹھنڈ میں باہر پھرنا اچھا نہیں ہوتا بیٹا۔ اس کے گرم ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے وہ محبت سے بولی۔ اس نے والیوم کم کر کے ان کی طرف رخ موڑ لیا۔ شاید ماں کے رویے سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ آج بہت ملول ہیں۔ موسم کی خون کی سرد رویوں سے بھلی ہوتی ہے ممی، کم از کم روح سرد کر دینے والے رویے تو برداشت نہیں کرنے پڑتے۔ بھاری لہجے میں جذبات کی گرمی، محبت کی نرمی قطعی شامل نہ تھی۔ اس کا مخصوص بے تاثر سپاٹ لہجہ سرسری انداز اختیار کیے ہوئے تھا۔ صوفیہ بیگم کے دل پر یہ فکرہ بھالا بن کر لگا، تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ اس گھر میں بھی رہتی ہوں قاری بیٹا، تمہاری ماں، جس کی زندگی میں سوائے تمہارے کوئی خوشی کوئی آس نہیں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا جس پر باہر کی خون خوا کا اثر اب تک باقی تھا۔ فطری طور پر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، بے اختیار ان کے کندھے پر اپنا مضبوط بازو پھیلا دیا۔ سیم ہیئر ممی، بہت جھجکتے ہوئے وہ کہہ گیا تھا۔ صوفیہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بے ساختہ مسکراتی۔ یوں ظاہر ہو جانا اس کی خواہ نہیں تھی۔ تمہارا یہ فکرہ مجھے تا حیات یاد رہے گا قارب۔ اس کی محبت پر ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، چہرہ تمتما گیا تھا۔ یہ احساس کہ جس بیٹے کے لیے انہوں نے صفدر صاحب جیسے شخص کے ساتھ زندگی کے طویل 32 برس گزار دیے تھے، بظاہر خواہ کتنا ہی بیزار لا تعلق کیوں نہ تھا، در پردہ ان سے محبت کرتا ان کے اندر بہت کچھ سیراب کرتا چلا گیا۔ قارب نے بڑی سنجیدہ مبہم مسکراہٹ سمیت ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ کو یہ احساس کیوں کر ہوا ممی کہ میری زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں؟ اس لیے بیٹا کہ تم نے آج تک اپنے کسی جذبے کا اظہار نہیں کیا۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے تمہیں سب سے یوں ہی لا تعلق سا دیکھا ہے۔ صفدر نے تمہیں بورڈنگ میں ڈالا، تب بھی تم نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، حالانکہ میں سمجھتی تھی کہ تم میرے ساتھ رہنے کے لیے ضد کرو گے۔ ایسا کبھی نہ ہوا۔ چھٹیوں پر تم آتے اور اسے خاموشی سے چلے بھی جاتے۔ تمہارے جانے کے بعد میں بالکل خالی خالی محسوس کرتی تھی خود کو۔ ایسا لگتا جیسے تم اپنے ساتھ میری ذات بھی لے گئے ہو۔ یہ خالی وجود پیچھے منتظر رہ جاتا، ساتھ یہ امید بھی ہوتی جب تم آؤ گے تو میرے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، تمام زخم مندمل ہو جائیں گے۔ اب جب کہ تم میرے ساتھ ہو مجھے اب بھی خود سے بے پناہ فاصلے پر لگتے ہو۔ صوفیہ بیگم کا لہجہ چور چور تھا۔ قارب کے لب ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، کسی گہری سوچ کا عکس اس کے چہرے پر در آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، آپ میری ماں ہے ممی، آپ تو مجھے بنا کہے بھی جان سکتی ہیں۔ میں لفظوں کا استعمال کروں نہ کروں، آپ مجھ میں اتر کر مجھے پڑھ سکتی ہیں۔ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ صوفیہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنی نازک کمزور مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں نے اپنے آپ کو آپ سے دور نہیں رکھا، مگر ممی میرے اندر فاصلے جڑیں پھیلا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ڈیڈی نے ہر وہ شے جسے میں نے محبت بھری نظر سے دیکھا مجھ سے دور کر دی۔ شاید اسی خوف کی بنا پر میں آپ سے بھی فاصلے قائم کرنے لگا تھا، اور اب یہی خوف میری عادت ہو چلا ہے۔ ان کے شانے پر سر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اس سوچ نے تپش سے بھر دی۔ بظاہر اس کی نظریں ٹی وی پر متحرک تصویر پر تھیں، مگر ذہن ماضی کے کھنڈروں میں بھٹک رہا تھا، اور یہ سفر اس قدر تھکان آمیز تھا کہ کچھ دیر بعد وہ سو گیا۔ بے وقت اور بے جگہ سونے کی گوکے سے عادت نہیں تھی۔ آج صوفیہ بیگم کی قربت نے فاصلوں اور مسافتوں کی کچھ برف پگھلا دی تھی۔ صوفیہ بیگم نے محبت سے اسے دیکھا۔ ان کے لیے آج بھی وہ 6 سالہ وہی قاری تھا جسے صفدر صاحب نے زبردستی بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے اس نے ڈبل ماسٹرز کیا، اور یہ تمام عرصہ وہ ان سے دور ہی رہا تھا، محض چھٹیوں میں آتا تھا۔ تاہم 13 دن پہلے وہ یہاں مستقل طور پر لوٹ آیا تھا، اور آتے ہی صفدر صاحب نے اسے آفس میں لگا لیا تھا۔ بیش قیمت تعمیری اور فرنیچر کے لیے استعمال ہونے والی لکڑی کا بزنس انہوں نے اس کی غیر موجودگی میں خاصا پھیلا لیا تھا۔ ماں اور ممتا سے دوری اور باپ کی فطری شفقت سے محرومی نے اسے بہت کم آمیز، خود سے بھی لا تعلق سا بنا دیا تھا۔ صوفیہ بیگم کی محبت اسے کھلنے کا حوصلہ نہ دے سکی تھی۔ اس نے اپنے گرد بڑا مضبوط حفاظتی خول بنا لیا تھا جس میں وہ قید تھا۔ کہتے ہیں کہ بیٹے کا قد باپ کے برابر آ جائے تو باپ کا جوتا اس کے پیروں میں فٹ آنے لگے تو باپ کو بیٹے کا دوست بن جانا چاہیے۔ صفدر صاحب نے یہ مسل ضرور سنی تھی، عمل کرنے کی کبھی ضرورت سمجھی نہ ہی خواہش کی۔ اس کے بالوں میں گردش کرتی ان کی انگلیاں اس وقت تھمی جب رات کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ صفدر صاحب یقیناً آرام کرنے کے بعد اسٹڈی میں مصروف تھے۔
9 बजते ही उन्हें खाना मेज़ पर चाहिए होता था। सोफिया बेगम ने इसे बड़ी मोहब्बत से जगाया कि अगर वो इस वक्त टेबल पर मौजूद ना होता तो सुबह वाला वाक़या फिर दोहराया जाता। वो नहीं चाहती थी कि घर की फ़ज़ा फिर मगता रहो, और चाहता तो वो भी यही था, इसलिए खामोशी से उठकर आ गया। बेवक्त सो रहे हो, अब सारी रात जागना, सुबह ऑफिस में क्या खाक काम करोगे? सामने वाली कुर्सी खींचकर इसे बैठता देखकर सफ्तर साहब कहे बगैर न रह सके थे। कारिब ने इंतहाई नागवारी से उनकी तरफ देखा। यह सोया नहीं था, महज लेटा हुआ था। सोफिया बेगम ने कमज़ोर से लहजे में दखल अंदाजी की। तो आंखें इस कदर सुर्ख क्यों हो रही हैं? इस बौद्धे बहाने पर उन्होंने जलती हुई निगाह पर दोनों पर डाली थी। सोफिया बेगम सटपटा सी गई। बहाना सूझ ही गया। दरअसल इसे बुखार हो रहा है, इसलिए बुखार की वजह से आंखें सुर्ख हो रही हैं। वो इसका दिफा कर रही थी, जिसने बेजारी से गिलास उठाकर लबों से लगा लिया था। सफ्तर साहब कुछ धीमे पड़ गए थे, साथ ही हुक्म सादिर हुआ, बुखार हो रहा है तो इसे दलिया वगैरह दो, ये ठंडा पानी उठा लो इसके सामने से। सूफिया बेगम को तो लेने के देने पड़ गए थे। आज इसकी पसंद के कोफ्ते बनाए थे। गो के इसने कभी खुद से फरमाइश नहीं की थी, ताहम ये डिश वो बड़ी रग़बत से खाता था। कारिब ने सर्द व स्पाट नज़र से सफ्तर साहब की तरफ देखा, गिलास पटक कर डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया। सूफिया बेगम पुकारती रह गई थी, मगर वो पलटा नहीं। सुबह नाश्ता भी नहीं किया इसने, दोपहर में भी घर नहीं आया था, इस वक्त तो खाना खा लेने देते इसे। सफ्तर साहब को गुस्से से देखते हुए बेख्तियार कह गई थी। सफ्तर साहब ने यकदम चौंक कर उनकी तरफ देखा। उनके तेवर भांप कर यकदम उनका चेहरा सुर्ख हो गया। ये किस लहजे में बात की है तुमने सूफिया बेगम? याद रखो, मैं इस किस्म के लहजे बर्दाश्त करने का आदी नहीं। अगर तुम यह सब इसलिए कर रही हो, कारिब यहाँ तुम्हारी पुश्त पनाही के लिए आ गया है, तो ये जान लो मैं इसे वापस भी भेज सकता हूँ। कराची में हमारी फर्म की दूसरी शाख मौजूद है, माइंड इट। उनका सर्द लहजा रगों में लहू जमाने की सलाहियत रखता था। सोफिया बेगम आंखों में आई नमी गालों पर फैलने से ना बचा सकी। दूसरी सुबह सर्दी की शिद्दत में इजाफा ही लाई थी। हस्बे आदत 6:30 बजे गेट से बाहर निकला तो खिलाफ तवक्को शदीद यक पस्ता हवाओं ने इसे हिसार में ले लिया था। एक लम्हे को इसे महसूस हुआ कि इसकी ब्राउन लेदर की जैकेट और ब्लैक लेदर की पैंट 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाली हवाओं का मुकाबला करने की सकत नहीं रखती। मगर पलट कर जाने का मूड ना हुआ। वही रास्ता था, वही मकानात, नाकाफ़ी धूप और दबीस कोहरे के बाइस हर शय धुंधली होकर मुस्मराइज कर रही थी। यहाँ का मौसम भी अजीब है, बिल्कुल डैडी की तरह, बरूदत लिया हुआ, सर्द मेहर अंदाज वाला। एक हू का आलम तारी था हर जानिब। वो बिला इरादा ढलवानी रास्ते की तरफ हो लिया। तिरमजी कॉटेज के सामने से गुजरा तो लकड़ी के जंगले के इस तरफ संगी बेंच पर बैठी वो लड़की नजर आई, जिसकी मुस्कुराहट का कल इसने जवाब तक न दिया था। हाथ में स्टोन वेयर का जहाज़ी साइज़ मग था में यकीनन कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। इस शदीद सर्दी में इसे बेंच पर देखकर इसे दर हकीकत अचंभा हुआ था। जाहिर किए बिना अपनी रफ्तार से चलता आगे बढ़ता चला गया। लड़की के लबों का तबस्सुम इसे देखकर उभर आया था। जब तक वो ढलवानी सड़क पर चलता रहा, इसे 2 आँखों का इल्तकाज़ अपनी पुश्त पर बराबर महसूस होता रहा। और फिर ये जैसे इसके मामूल का हिस्सा बन गया। रोज़ाना वो इस रास्ते से गुज़रता, रोज़ ही वो दोस्ताना मिजाज वाली लड़की से नज़र आती। वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था, मगर हर बार इसे ये महसूस होता कि वो लड़की जैसे इसकी ही मुंतज़िर होती है। ख़ासी मुस्तकिल मिजाज थी वो भी। मजाल है किसी दिन इसके खुश्क रवैये का जवाब इसे नज़रअंदाज करके दिया हो। कारिब जद्दून ने समझा शायद ये भी एबटाबाद के खूबसूरत मंजर का हिस्सा है। जब ही इसे धीरे धीरे कबूल कर रहा था, अचानक एक रोज़ वो गायब हो गई। पूरे 20 दिन बाद इस रूटीन में खलल पड़ा था। हस्बे मामूल वो इस तरफ आया तो बेंच खाली देखकर हैरान सा रह गया। नज़र बेसाख्ता ऊपर बालकनी की तरफ उठी, वहाँ भी नहीं थी। एक लम्हे को इसे एहसास हुआ जैसे तिरमज़ी कॉटेज की सारी रंगीनी इस वजूद से थी, जो आज नज़रों से ओझल था। बावजूद ख़ुद से छुपाने के इसे वाज़े तौर पर महसूस हुआ जैसे इसे धचका लगा है। यकीनन वो इसे देखने का आदी हो चुका था। यह एहसास इतना कवी और इस कदर नाकाबिले यकीन था कि कितनी देर अपनी नफ़ी करता रहा। चंद कदम आके चल कर इसे महसूस हुआ जैसे वो ख़ुद से ज़्यादा देर लड़ नहीं सकता। बेसाख्ता बिला इरादा मुड़ कर इस बेंच की तरफ देखा, हनूस खाली थी। फिर इसे मालूम नहीं इसने महज इसी ढलवानी सड़क वाले हिस्से के कितने चक्कर लगाए। लाशौरी तौर पर वो चलता रहता, जब चौंकता खुद को इसी मुकाम पर पाता। शिट,
ख़ुद पर इतना इख्तियार तो रखो कारिब जद्दून कि अपना रास्ता मुतय्यन कर सको। दिल ने ज़बरदस्त सरजनिश की थी से, सो इसने घर आने में ही आफियत जानी। जाली का मखसूस दरवाज़ा बाकायदा धमाके से खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ था। 8 बजने में अभी कुछ वक्त था। लाउंज से डाइनिंग रूम की तरफ जाती सोफिया बेगम यकीनन चौंकी थी। बेसाख्ता घड़ी पर नज़र डाली। कारिब, तुम बेटा आज कुछ जल्दी नहीं आ गए? कुछ मुतरद्दत सी पास चली आई थी। कारिब ने कुछ झुंझलाकर उनकी जानिब देखा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वापस चला जाता हूँ। खासे तुंद लहजे में जवाब मौसूल हुआ था। सोफिया बेगम ने आपके बगौर इसके चेहरे की तरफ देखा, जिस पर से ठंडी हवाओं का असर गायब हो चुका था। ज़बरदस्त किस्म की झल्लाहट वाज़े थी। जाने क्यों वो मुस्कुराती। खैरियत तो है बेटा? आज कुछ ख़ास बात लग रही है। लगता है कुछ डिस्टर्ब हो तुम। मोहब्बत भरा लहजा मिजाज आशनाई की यकीन से पुर था। उसने एकदम सर उठाकर उन्हें देखा। आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? बस यूं ही गुस्सा आ गया था मुझे। उनके तरद्दुद पर इसके लहजे में नरमी उतर आई थी। वही तो पूछ रही हूँ, कोई वजह भी तो हो। तुम तो अपने डैडी की बड़ी से बड़ी बात पर भी यूं झुंझलाते नहीं। सोफिया बेगम अब संजीदा हो गई थी। इसने उन्हें टालना ही बेहतर जाना। उठ खड़ा हुआ। वजह कोई ख़ास नहीं मम्मी, मेरे वॉकिंग ट्रैक पर कुछ पत्थर वगैरह डाल दिए थे लोगों ने, इसलिए रास्ता न मिलने की सूरत मुझे पलटना पड़ा। उम्मीद है अब आपकी तसल्ली हो गई होगी। संजीदगी से कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था और सोफिया बेगम ये सोचती रह गई थी कि रास्ता एक तरफ से बंद था तो दूसरी तरफ से तो नहीं। फिर वापसी की वजह क्या हो सकती थी? उस रोज़ डैडी की ज़रा सी बात भी इसे मुश्तिल कर गई थी। बजाय टेबल से उठ जाने के इसने बड़ी बेखौफी से उनकी बात का जवाब दे डाला था। लिहाजा सुबह ही सुबह बदमज़गी हो गई। बदमज़गी तो वाकई हुई थी, मगर कहाँ और कैसे सिर्फ वही जानता था। ऑफिस में भी इसने किसी से कलाम करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। ताहम काम की ज़्यादती के बाइस वापसी पर अज़हद थका हुआ था। सीधा अपने कमरे में चला आया। खाने के लिए इसने इनकार कर दिया था, सो लेटते ही सो गया। ताहम सफ्तर साहब के बड़बड़ाने की आवाज़ें इसके बिस्तर पर लेटते हुए सुन ली थी। तकिया कानों पर रखकर उनसे निजात हासिल करना कुछ मुश्किल न था। अगले 2 दिन इसी तरह गुजर गए। देर मज़ीद कॉटेज वाली वो लड़की 2 दिन मज़ीद नज़र न आई। इसे शदीद झल्लाहट ने आ घेरा। इस दौरान कई बार इसने तुरशी से ऑफिस के कई वर्कर्स को डांट दिया था। सफ्तर साहब ने इसे इस मोड में देखा, कुछ मुतमईन से हो गए। कम अज़ कम इस तरह इसका रौब कायम हो गया था वर्कर्स पर, और वो यही चाहते थे। मुमकिन है महज तफरीह के लिए यहाँ आई हो, इसलिए वापस चली गई होगी। तीसरे दिन वहाँ से गुजरते हुए इसने सोचा और राह में आई पत्थर को ठोक कर लगाता आगे बढ़ गया। ये इलाका एबटाबाद का पॉश एरिया था। ऑफिसर्स और अच्छे खाते पीते लोगों के घर थे यहाँ, इसलिए गुमान गालिब आया कि मुमकिन है वो यहाँ अपने किसी रिश्तेदार की यहाँ कुछ अरसा गुजारने आई हो। दिल ने दिमाग की दलील मानी तो एक अजीब सी घुटन इसका हिसार कर गई। यूँ 1.5 माह गुजरने के बाद फिर से वो एबटाबाद की यख बस्ता नामालूद फ़ज़ाओं से शाकी हो गया था। वाक़यात से ज़्यादा अहमियत इन वाक़यात के नतीजे में बदलने वाले एहसासात और जज्बात की होती है। एक ज़रा सी बात ने इसे ठीक ठाक डिस्टर्ब कर दिया था। ऑफिस के अलावा मेरी कोई एक्टिविटी नहीं, इसलिए फ़जूल बातों में जहन भटक रहा है। इसने अपना जायज़ा लिया तो इसी नतीजे पर पहुंचा। चुनांचे शाम में इसने एक जिम ज्वाइन कर लिया। स्नोकर और वेट लिफ्टिंग के मशगले इसे ज़्यादा पसंद आए कि इसमें बातचीत की ज़रूरत बहुत कम पड़ती थी और इसे ख़ुद में गुम रहना ज़्यादा पसंद था। एक हफ़्ता इसी तरतीब से गुजरा। सुबह वो खासी देर से उठने लगा था कि तिरमिज़ी कॉटेज के सामने से गुजरते इसके आसाब नामालूम बोझ के बाइस खींचने लगते थे। उस रोज़ भी यही हुआ। कुछ तो सर्दी की शिद्दत, मौसम सरमा के अरूज पर आने की वजह से सूरज देर से तुलू होने लगा था। कुछ वो भी थकन के बाइस देर तक सोया रहता था, इसलिए जिस वक्त आँख खुली 7:30 बज रहे थे। उसने खिड़की से झांका। सूरज की किरणें अब तक धुंध में गायब थीं। नामालूद फ़ज़ाओं ने माहौल को कुछ और भी सर्द बना दिया था। जिस वक्त वो बाहर निकला, सर्द तरीन हवाओं ने इसका इस्तकबाल किया था। दाएं जानिब जाते जाते न जाने क्यों इसके कदम तिरमिज़ी कॉटेज की जानिब उठ गए। वो दिन शायद इसके इंतज़ार के इख्तिताम का दिन था कि शदीद मौसम के बावजूद आज बेंच पर निस्वानी पैक कर बड़े इत्मीनान से बैठा नज़र आ रहा था। एक लम्हे को इसे अपनी बसारतों पर यकीन नहीं आया था। कदमों की रफ्तार अस खुद लाशऊरी तौर पर सुस्त हो चली थी। शायद इसी का फ़ायदा उसने उठाया था कि अगले ही सेकंड बड़े इत्मीनान से कॉफ़ी का मग और थर्मास उठाए इसके सामने आ खड़ी हुई थी। कॉफ़ी मग में कॉफ़ी उंडेल कर इसकी तरफ बढ़ाते वो ज़रा नर्वस नहीं थी। जी, मुतअज्जब सा इसे देखने लगा।
कम ऑन, जल्दी से पी लें, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। इसने अब मग बिल्कुल इसके सामने कर दिया था। कारिब ने माथे पर शिकने डालकर बगौर इसे देखा। रोशन पेशानी, बड़ी बड़ी साहिर आंखों वाली लड़की के चेहरे पर बला की सादगी और मुरव्वत थी। वह ना सिर्फ काफ़ी पुरएतमाद थी बल्कि खासी निडर भी लग रही थी। जब भी कारिब के खुशमगी तेवरों से खाइफ नहीं हो रही थी। देखिए, मेरा पोस्टमार्टम आप काफ़ी पीते हुए भी कर सकते हैं, बिलीव मी। इसमें काफ़ी क्रीम और 1 चम्मच शक्कर के अलावा और कुछ भी नहीं। आई स्वेयर, वैसे तो आपकी शक्ल देखकर मैंने यही सोचा था। गालबन शक्कर की थोड़ी बहुत मिकदार आपके इस्तेमाल में नहीं आती होगी, मगर मुझे शक्कर के बगैर कॉफ़ी में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इसलिए डालना ज़रूरी समझा। इंतहाई एतमाद का मुजाहिरा करते हुए बड़ी रसानियत से बोलकर मुस्कुराई थी। वो उलझ सा गया। लीजिए ना, प्लीज़। इसे यूं ही बाजू लपेटे खड़ा देखकर लड़की के चेहरे पर अपनाइयत भरा इसरार उतर आया। मैंने इतनी सुबह सुबह उठकर आपके लिए अलग से कॉफ़ी ब्लेंड की है और आप हैं कंसीडर तक नहीं कर रहे। इस जहमत की कोई ख़ास वजह? वो अब तक तज़ब्ज़ुब में था, बिलाखिर बोल पड़ा। जवाबन वो लड़की यूँ मुस्कुराई जैसे कली खिल उठी हो। आप इस इलाके में नए नए आए हैं, एक तरह से मेहमान हैं हमारे। बड़ी सादगी से तवज्जो पेश की गई। कारिब ने तज़ब्ज़ुब से अंदाज में मग थाम लिया और यूँ देखा जैसे कह रहा हो, बड़ी जल्दी ख्याल आया शर्फ़ मेज़बानी बख्शने का। मगर वो भी बला की ज़हीन थी, हंसकर कह उठी, जितने रूड अंदाज में मुझे देखकर आप इग्नोर कर दिया करते थे, ऐसे में भला और क्या करती मैं? वो तो पिछले 10 दिनों में जिस तरह आपने हमारे कॉटेज के सामने परेड कर कर के रोड 2 इंच घिसा दी, मैंने हिम्मत कर डाली मुखातिब करने की। किस दर्जे सुकून से वो इसकी लाशौरी हरकत से बाखबर होने की तस्दीक करती चली गई थी। कारिब जद्दून दिल ही दिल में बुरी तरह नादिम हो उठा था, ताहम संजीदा नज़रों से इसे देख रहा था। इनफैक्ट पैर में ज़बरदस्त मोच आ गई थी, सीढ़ियों से लॉन्ग जंप लगाने के नतीजे में। दादों ने पकड़कर बेडरूम में कैद कर दिया। वैसे मैं रोज़ सुबह आपको ग्लास विंडो से देखा करती थी, बेफिक्री से कहते हुए थर्मोस बेंच पर रखकर वापस सपना मग उठा लाई थी। चलिए वॉक करते हो, कॉफ़ी का मज़ा लेंगे। अरे, आपने अब तक शुरू भी नहीं की। सुनिए, यकीन करें, इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं, कहीं तो मैं चख दूँ। कहते कहते इसने आगे हाथ बढ़ाकर मग इसके हाथ से लेना चाहा था। बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त कर सका। रहने दीजिए, इंसानों की इतनी तो पहचान है मुझे। मतानत से इसने कहा तो जैसे इसका मान बढ़ गया था। आई एम रियली ऑनर्ड। वैसे मुझे जुनाइशा कहते हैं। योर गुड नेम? कारिब जद्दून। इसने कॉफ़ी का पहला सिप लेकर जवाब दिया तो सर हिला गई। नाइस नेम। हाँ, वैसे देखने में आप खासे वसीले लगते हैं, मगर इतने हैं नहीं। तौसीफ़ के साथ साथ तबसरा भी हाजिर था। मुबहम सा मुस्कुरा दिया। ये आप कैसे कह सकती हैं? वो दोनों पहलू ब पहलू चल रहे थे। काफ़ी अच्छी वक्त थी। इसका मूड लाशौरी तौर पर खुशगवार हो गया था। जब ही सवाल कर लिया, जिसके जवाब में जुनाइशा ने कदरे ठुनक कर अपनी कमर पे हाथ रखा था। क्योंकि आपकी तरह इंसानों की इतनी तो पहचान मुझे भी है। बरजस्ता इसका जुमला दोहरा दिया था। कारिब के चेहरे के नकोश में यकदम नरमी उतर आई। ये लड़की से दिलचस्प लगी थी। बाज़ लोगों में आगे बढ़ने का हौसला नहीं हो पाता, शायद उनकी अना उनका रास्ता रोक लेती है, जिसकी वजह से शाहराहे हयात पर मिलने वाले सैकड़ों अच्छे हम सफ़र उनसे दूर ही रह जाते हैं। अगर कोई इन सब से आगे बढ़कर ऐसे लोगों से आ मिले तो ना सिर्फ उनकी अना का भरम रह जाता है, बल्कि तन्हा मुसाफत झेलने की अजियत से भी छुटकारा मिल जाता है। शायद यही वजह थी कि कारिब जद्दून के पथरीले तासुरात वाले चेहरे पर मुस्कुराहट की नर्म किरणें फैल गई थीं। इसके बाद के जवाब में वो खामोश ही रहा था। कुछ देर उनके दरमियान एक चुप फैल गई, जिसे जुनाइशा ने ही तोड़ा। काफ़ी अच्छी थी ना? यकीन से सवाल किया था उसने। महज सर को खफीफ से जुम्बिश देने पर इक्तफ़ा किया तो वो सादगी से बोली, दादो कहती हैं मेरे हाथ में वाकई जायका है। जो चीज़ भी बनाऊं अच्छी बनती है, इसीलिए हर काम के लिए दादो मुझे ही आवाज़ देती हैं। आप हमारे घर आएँ तो अंदाज़ा होगा कि जोनी की पुकार हर वक्त गूंजती रहती है। बेतकल्लुफ़ी से बोलती इसके साथ साथ चल रही थी, और वह ख़ुद पर और इस पर हैरान था। बग़ैर किसी रस्मी तकल्लुफ़ के दोनों किस तरह बाहम मुतारफ़ हो गए थे। ख़ास तौर पर इसे जुनाइशा पर हैरत थी, क्योंकि इस इलाके के लोग ख़्वाह कितने ही अपर क्लास में शुमार होने लगे, रिवायती पर्दे और ख़वातीन के लिए आज़ादाना घर से बाहर निकलने का कोई ख़ास तसव्वुर नहीं था। जबकि यहाँ जुनाइशा न सिर्फ अकेली घर से बाहर थी, बल्कि एक बिल्कुल अनजान शख्स के साथ थी। आपके घर में कौन कौन है? अपने बारे में बताकर इससे दरियाफ्त किया।
मम्मी, डैडी और मैं। ओह, जब ही इतने कम गो हैं आप, घर पर कोई बात करने वाला नहीं होगा ना? वैसे हमारे घर मामा, पापा, दादो, बड़े 3 भाई और 2 बड़ी बहनों के अलावा एक भाभी और 2 भतीजे भी हैं, मगर सब पिंडी में हैं। जबकि यहाँ सिर्फ दादो, मैं और पापा हैं। इनफैक्ट दादो अपना आबाई इलाका छोड़ना नहीं चाहती, जबकि मामा को अपने आबाई शहर से मोहब्बत है और मुझे दादो से। चमकते चेहरे पर नम आलूद फ़ज़ा ने नमी से बखेल दी थी। सख्त ठंड के बायस इसकी नाक सुर्ख हो गई थी। हाथ भी यकीनन यख हो रहे थे, जिन्हें आपस में मुसलसल रगड़ने का अमल जारी था। बाय द वे, आप कहाँ से आए हैं? बोलते रहने की गालबन इसे आदत थी, मगर वो फिर भी कारिब की खामोशी महसूस कर गई थी। कराची से। वो भी इख्तसार से गोया हुआ था, नज़रें सामने की तरफ थी। अगर जुनाइशा इससे मुखातिब ना होती तो यूँ ही लगता जैसे वो दोनों एक दूसरे से अनजान अपने अपने रास्ते चल रहे हों। आई सी, वहाँ क्या करते थे आप? वो मुसलसल इसे बोलने पर उकसा रही थी। स्टडी? मतलब क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी? लहजे में दिलचस्पी का आंसर गालिब था। एमएससी मैथ्स और एमएससी इकनॉमिक्स। इसके अलावा रिसेंटली मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के फ़ाइनल पेपर्स भी दिए हैं। अब के मुफस्सल जवाब आया था। जुनाइशा ने फातहाना अंदाज में कदरे मरबूबियत से इसे देखा। सुपर्ब। मुझे देखिए, मैं अपना सीनियर कैम्ब्रिज करके इस्लामाबाद से भाग आई हूँ। बाबा कहते हैं आगे स्टडी करूँ, मगर दिल ही नहीं मानता था। वैसे आप तो खासी जीनियस हैं। मेरी कयाफा शनासी आपके मुतालिक काफ़ी दुरुस्त थी। वो हंसी। अच्छा, मसलन? बिलाखिर वो ख़ुद से बोलने पर राज़ी हो ही गया था। मसलन यही कि आप संजीदा, कमगो, ज़हीन शख्स हैं। अलबत्ता मिजाज आपका मुझे बेहद सख्त लगता था। जिस तरह आपने शुरू में मेरी मुस्कुराहट के जवाब में इग्नोर किया, मैं यही समझी थी कोई सड़ियल मिजाज बनता है। बट यू आर नाइस अ मैन। थैंक्स। यकदम इसने रुख फेर कर इसे गहरी संजीदा नज़रों से देखा था। माई प्लेजर। वह हनूज़ मुतमईन और पुरएतमाद थी। इसकी निगाहों ने इसे डिस्टर्ब नहीं किया था, बल्कि वो इसके मुतवज्जा होने पर रुक गई थी। सो इसे भी ठहरना पड़ा। वो हाथ बढ़ा रही थी। फ्रेंड्स? आंखों में खलूस की चमक और होंठों पर मुस्कुराहट लिए वो दिलकश चेहरे समेत इसकी तरह मुतवज्जा थी। कारिब की संजीदा आंखों में यकलख्त सख्ती और खिंचाव उतर आया। दोस्ती करना इतना आसान काम नहीं होता मिस जुनाइशा। ये रिश्ता एतमाद का रिश्ता होता है, और एतमाद के लिए परखना ज़रूरी है। इसकी बात बड़ी खरी और साफ थी। जुनाइशा इस रद्द अमल के लिए तैयार नहीं थी। जब भी चंद सेकेंड इसे तहय्युर से देखती रही, फिर ख़ुद पर काबू पाते हुए इसने हाथ नीचे गिरा लिया था। तो गोया आपके नज़दीक मैं काबिल एतमाद नहीं हूँ? एतमाद दो तरफ़ा होना चाहिए, मैंने ये कहा है। तो मुझे तो है ना एतबार, मुझे अपने वजदान पर भरोसा है, इसलिए मैंने आपको। एनीवे, वो वजाहत करने जा रही थी, एकदम कुछ सोच कर रुक गई। इसके मुतबस्सम चेहरे पर एहसास तौहीन से सुर्खी छा गई थी। कारिब ने जांचती नज़रों से इसे देखा। कदरे तासुफ महसूस हुआ। मैं अब वापस पलटूँगी, दादो मेरा वेट कर रही हूँ कि। वापसी के लिए मुड़ने से पहले फीकेपन से मुस्कुराई थी, मगर कारिब को इसकी आंखों में फैलता मलाल वाज़े नज़र आ गया था। प्लीज़ जुनाइशा, माइंड मत कीजिएगा, मैं मेल फीमेल फ्रेंडशिप को ज़्यादा पसंद नहीं करता। किसी एहसास के तहत इसने बेसाख्ता कहा था। जुनाइशा ने चौंक कर इसे देखा। पसंद नहीं, या आप किसी वजह से अफोर्ड करना नहीं चाहते? अल्फाज कुछ भी हों, मायने एक ही हैं। फिर से अपने खौल में सिमटा था। क्या आप अंगेज्ड हैं? इसे बगौर देखकर इसने एकदम सवाल कर लिया था। कारिब ने बमुश्किल लबों पे फैलते तबस्सुम को दबाया। नहीं तो? क्वाइट स्ट्रेंज। फिर किससे खाइफ हैं? क्या फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं? ज़रा देर पहले वाले एहसास को भुलाए फिर से दिलचस्पी लेने लगी थी। कारिब को लाशौरी तौर पर तमानियत का एहसास हुआ कि चलो बहल गई है। अगर मैं कहूँ कि हाँ तो? इसे मक पकड़ा कर इसने बाजू सीने पर लपेटे। फिर तो वाकई कुछ सोचना पड़ेगा। मसलन क्या? मसलन ये कि एनीवे, फिर बताऊँगी। अच्छा, अब चलती हूँ। किसी गहरी सोच का इजहार करते करते ये एकदम रुक गई थी। फिर बड़ी उजलत से खुदा हाफिज़ कहती पलट गई तो कारिब ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले इसे हद्दे निगाह तक जाता देखता रहा। बहुत अजीब थी वो। ऊपर की तरफ उठती सड़क पर सहज सहज कदम उठाती वो नज़रों से ओझल हो गई तो इसे एहसास हुआ कि अब चहलकदमी में दिल नहीं लग रहा था। सो अगली मोड़ पर मुड़कर वापसी के लिए कदम बढ़ाती है। दूसरे दिन वो इस ख्याल से निकला, आज यकीनन वो नज़र नहीं आएगी।
जो ही तिरमिज़ी कॉटेज के सामने पहुंचा, गालिबन इसी की मुंतज़िर थी। खुशगवार मुस्कुराहट समेत कदम बढ़ाती इस तक चली गई। मेरे साथ दोस्ती ना सही, वाक तो की जा सकती है ना। इसकी आंखों से झलकते किसी कदर इस्तेजाब का सादगी से जवाब दिया गया था। वो खामोश हो रहा था। ताहम लाशौरी तौर पर इसे इसकी संगत अच्छी लगी थी। फिर वकिया तमाम रास्ते हल्की फुल्की गुफ्तगू करती रही और वो ना चाहते हुए भी सुनता रहा। बज़ाहिर खामोश था, मगर तमाम हसियात समेत इसकी तरफ मतवज्जा। और फिर ये इसका रूटीन बन गया। सुबह वक्त पे निकलता, जुनाइशा इसे मुंतज़िर मिलती। शदीद सर्दी के साथ साथ अब हल्की हल्की बारिशें भी शुरू हो चुकी थीं। रास्ते ढलवानी होने के बायस फिसलन बढ़ गई थी। उस दिन भी वो मम्मी के मना करने के बावजूद रुक ना सका। मैं जल्द वापस आ जाऊँगा मम्मी, मगर बेटा आज मौसम काफ़ी अबरालूद हो रहा है। पूरी रात बारिश हुई है। सोफिया बेगम ने इसे रोकना चाहा। तुम्हारा आ जाना ज़रूरी तो नहीं, कौन सा कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। न जाने अकेले घूमते रहने में तुम्हें क्या मज़ा मिलता है, वो भी इस सख्त सर्दी में। कार्डिगन पर मज़ीद एक और ऊनी शाल लिए वो हैरत से इसे देख रही थी। इसने बेख्तियार नज़र चुरा ली। मैं रोज़ाना वॉक का आदी हूँ, आप जानती हैं, मेरे बचपन की रूटीन है। हनूज़ इसी फैसले पर कायम था। सोफिया बेगम ने कुछ देर टटोलती नज़रों से इसे देखा, फिर कुछ सोच कर रुकने का इशारा करती वापस चली गई। जब पलटी तो उनके हाथ में फ़र की लाइनिंग वाला लेदर का रेनकोट था। खामोशी से लेने में आफिया जानी और बाहर निकल आया। आज इसने सोफिया बेगम से पहली बार कुछ बहस की थी। फितरी तौर पर अपने इस रवैये ने सोफिया बेगम समेत इसे भी चौंकाया था। वो ख़ुद से सवाल कर रहा था, आखिर में वक्त पर आने के लिए इस कदर बज़ीद क्यों था। क्या जुनाइशा इसका मुहर्रिक है। और जवाब में इसके अंदर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। इससे पहले कि अगले लम्हे कोई जवाब मिलता, असल झटक कर आगे बढ़ गया। कदम तिरमिज़ी कॉटेज की जानिब उठ रहे थे। न जाने इसे क्या हुआ, एकदम मुतज़ाद सिमत में चल पड़ा। शायद ख़ुद पर जबर करता या ख़ुद को बावर करवाना था कि हकीकतन ऐसा नहीं। आधे घंटे भीगी सड़कों पर इधर उधर मटर गश्त करते, टहनियों पर ठहरे बारिश के कतरों को गिराते इसे मुस्तकिल एक बेकली सी रही। सो इसे पलटना ही पड़ा। जुनाइशा हस्बे साबिक इसकी मुंतज़िर थी। इस शदीद ठंड के बावजूद आज वह महज मनीला का शलवार सूट ज़ेबतन किए हुए थी। ऊनी शाल कंधों पर डाले, बेइंतहा सर्दी से सुर्ख होती नाक और सफ़ेद पड़ते चेहरे समेत इसी तरफ चेहरा किए खड़ी थी जहाँ से इसे आना था। बालों की सादा सी चुटिया बनाए, पठानी टोपी सर पर ओढ़े, वह पिछले दिनों से आज बेहद मुख्तलिफ लग रही थी। बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ते कदमों में तेज़ी आ गई। हेलो, क्या हाल है। आज पहली बार मुखातिब होने में कारिब ने पहल की थी। जुनाइशा खिलाफ तवक्को हद दर्जे संजीदा सी से देखने लगी। व्हाट्स रॉन्ग, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। मुतरद्दद सा हो क्या। आज आपने आने में बहुत देर कर दी। आपने कस्दन ऐसा किया है और मैं जानती हूँ कि क्यों। पहली बार वो इस लहजे में इससे मुखातिब थी। कारिब को इसकी पूरे एतमाद आँखों में तैरते मलाल को देखकर झटका सा लगा, लाजवाब सा होने लगा। दिल चाहा कुछ कहे, मगर वो बोल उठी थी, क्यों, ठीक कहा ना मैंने। आप महज मुझे कोफ्त में मुब्तला करना चाहते थे, जिताना चाहते थे कि मैं आपके साथ चलने के लायक नहीं। मेरी जैसी कई लड़कियां आपकी राहों में इसी तरह खड़ी रहती हैं, और मैं भी। बेदर्दी से अपने होंठ काटते हुए इसने खुद को कुछ कहने से बमुश्किल रोका था। फिर वो खुद नहीं रुकी, तेज़ी से पलट कर सफ़ेद गेट के पीछे गायब हो गई। ये सब इस कदर अचानक हुआ कि वो बस खड़ा का खड़ा ही रह गया। इसे जुनाइशा से इस दर्जे शिद्दत पसंदाना रद्द अमल की तवक्को नहीं थी, जो किसी बच्चे की तरह रोट कर अंदर जा बैठी थी। यकलख्त शदीद गुस्से ने इसे अपनी लपेट में ले लिया था। मम्मी से बहस करके आया, फिर ख़ुद से कितनी देर लड़ा था महज इसी के लिए, और वो मज़े से अंदर जाकर बंद हो गई थी। शिट। शदीद गुस्से से इसने सामने आए पत्थर को ठोकर लगाई और तेज़ कदमों से घर लौट आया। सोफिया बेगम इसे वापस आता देखकर जहाँ पुरसकून हुई, वहीं इसके चेहरे से झलकती चंद मिनट पहले के वाक़ये की तफसील महसूस करके चंबे में पड़ गई। इसमें आना कुछ ज़्यादा ही थी, शायद इसलिए दोबारा इस तरफ नहीं गया। यूँ खुद से लड़ते और जुनाइशा को नज़रअंदाज करते, अपने दिलो दिमाग को झटकते इसे 6 दिन गुजर गए। इस दौरान जुनाइशा भी इस तरफ नहीं आई थी। इसे सख्त गुस्सा था इस पर, ख़ुद पर भी, बावजूद चाहने के इसे मुकम्मल तौर पर जहन से निकाल नहीं पाया था। और इस सुबह जब वो ख़ुद को लान तान करता इधर उधर मटर गश्त कर रहा था, इसका रेन कोट तेज़ी से बारिश के कतरे इस पर से बहाई दे रहा था कि अचानक छतरी ताने, मुकम्मल गर्म लिबास और रेन कोट में मलबूस वो चली आई। वैसी ही शगुफ्ता, वैसी ही पुरखुलूस और नॉर्मल, जैसे रुक सा गया था इसे सामने पाकर। तुम?
लबों ने बे आवाज़ जुम्बिश की थी। जी मैं, बस गुस्सा उतर गया तो मैं आ गई। साथ ही खुद से नाराज़ भी हुई कि उस रोज़ नाहक आपको इतनी बातें सुना डाली। मुझे कम से कम पूछना तो चाहिए था कि आप लेट क्यों हो गए थे। मगर बस ये दिल भी बड़ा वहमी होता है। ये गुमान दिल में क्या आया कि मैं जलाल की लपेट में आ गई। आई एम सॉरी, मैं बहुत तल्ख हो गई थी उस दिन। होंठों का कोना दांतों तले दबाए शर्मिंदा नज़र आ रही थी। कारिब के कई दिनों से तने हुए असाब जैसे यकदम पुरसकून हुए। इल्ज़ाम लगाने से पहले हमेशा सोचना चाहिए जुनैशा, नहीं तो बाद में इसी तरह पछतावा माजरती कलमात तलाश करने पर मजबूर कर देता है। बड़ा क्लासिकल जवाब मौसूल हुआ था। नादिम सी जुनैशा के चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई। छतरी इसके सर पर तानते हुए बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। वो तो है, मगर मुझे एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ। पहली बार आपका इस कदर तवील जुमला सुनने को मिल गया। यकीन करें, मैं दादों से आपका तस्करा करती थी तो समझ में नहीं आता था आपकी क्या बात बताऊँ। आप कुछ बोलते जो नहीं। वो शौक़ी से बोली तो मुस्कुराहट दबाता तेज़ नज़र इस पर डालकर बोला, खामोशी में ही आफियत है फराज, जब कोई अपना हम ज़ुबान ना मिले। अच्छा शेर है। ज़ोर शोर से गर्दन हिलाते हुए दाद दे रही थी। बजा फरमाया आपने। मैं तो फ्रेंच बोलती हूँ ना। यकीनन इसे बुरा लगा था। कारिब पहली बार दिल से हंस पड़ा। हंसा कीजिए, अच्छे लगते हैं। इसे बेख्तियार बगौर देखने लगी थी। एकदम सर झटका। वैसे आपके शेर के जवाब में एक शेर याद आ रहा है। इरशाद। इसका मूड एकदम खुशगवार हो गया था। गुफ्तगू कीजिए कि फितरत इंसान है शकीब, जाले लग जाते हैं जब बंद मकां होता है। लहजा खूबसूरत, अंदाज दिल नशीं था। इसे शेर से ज़्यादा सुनाने वाली खूबसूरत लगी। किसी ने इसे अंदर से तंबीह की। वह हंसकर आगे चल पड़ा। फिर यूं हुआ कि बहुत हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता जुनैशा इसके करीब आती चली गई। इसने इसे चौंकाया नहीं, हैरान भी नहीं किया, परेशान भी नहीं। बस धीरे धीरे जैसे दिन चढ़े तो रोशनी फैलती जाती है, शाम उतरे तो अंधेरा गहरा होता चला जाता है। जैसे इब्तदाई तारीख़ों का चांद बतदरीज बढ़ता है, जैसे वक्त की इकाइयाँ मिल मिल कर दिन महीने और साल बनते चले जाते हैं। इसी तरह इसने अपनी शख्सियत का फसूं बड़ी नरमी बड़ी एहतियात से उसके अंदर उतार दिया था। कारिब जद्दों को मालूम भी ना हो सका और बेखबरी में ही वो इसके दिल के अंदर ख़ास जगह बना गई। दरूने ज़ात कहीं गहराई में जाकर बैठ गई, ऐसे कि वो कोई पेशबंदी भी ना कर सका। जज्बे वक्त के मरहून मिन्नत नहीं होते, ना ही कुर्बत की तवालत उनके लिए कोई किरदार अदा कर सकती है। मगर ये ज़रूर है कि वक्त की कोई इकाई ऐसी ज़रूर होती है जो टूटी डोर के सिरे आपस में बांध जाती है, और बस वही लम्हा हासिल ज़ीस्त हो जाता है। जो इस लम्हे की गिरफ्त में आते हैं, कभी कभी तो इन्हें इसी पल इस एहसास का इदराक हो जाता है, और कभी यूँ भी होता है कि वो ख़ुद को समझ ही नहीं पाते या झुठला देते हैं। इन्हीं दिनों एक रोज़ वो ऑफिस से जल्द वापस आ गया था। सर में दर्द था। डैडी से इसने कह दिया था, सो घर चलाया। पहला कदम ही रखा था लाउंज में कि हैरत के झटके से रुकना पड़ा। जुनैशा बड़े इत्मीनान से सलाद बनाने में मुनहमिक थी। कारपेट पर बैठी बेतकान बोलते हुए इसके हाथ तेज़ी से चल रहे थे। सूफिया बेगम सोफे पर बैठी गाहे बगाहे इसे भी देख रही थी। साथ ही चावल भी चुने जा रहे थे कि अचानक इस पर नज़र पड़ गई। अरे कारिब तुम! वो इसकी बेवक्त आमद पर खासी हैरान हुई थी। जुनैशा ने चौंक कर गर्दन को मोड़कर इसे देखा। दोस्ताना से दिल फरेब तबस्सुम ने इसके लबों का अहाता कर लिया था। कुछ सुस्त कुछ मुताज्जिब सा अंदर चलाया। नज़रों में सवाल था। खैरियत तो है बेटा, आज कुछ जल्दी आके? सूफिया बेगम इसकी तरफ आ गई। जी बस आज सर में दर्द हो रहा था। और फिर वो सुबह सुबह इस ठंड में बाहर, गज़ब खुदा का, तुम्हें तो बर्फ़बारी में भी चैन नहीं आता। देख लिया नतीजा इसका। अब बैठो, ग्रीन टी बनवाती हूँ मैं। उनकी प्यार भरी सर्जने शुरू हो गई थी। कारिब ने सवालिया नज़रों से जुनैशा को देखा, जो छुरी को माथे तक ले जाकर सलाम का इशारा कर रही थी। इसके चेहरे पर खुशगवारियत फातहाना मुस्कुराहट रकम थी। प्लीज़ मम्मी रहने दें, सुबह से कॉफ़ी पी पी कर हलक कड़वा हो गया। इसने उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया था, मगर वो टैबलेट लाने चलती, और जब पलटी तो एकदम जुनैशा पे नज़र पड़ी। गालबन इससे कुछ कहते कहते रुक गई थी। ओ हाँ, ये जोनी है बेटा, हमारी ब्लॉक में रहती है। वो तिरमजी कॉटेज है ना, वहाँ। तुम तो जान ही गई होगी, ये मेरा बेटा है कारिब। अंदर आते हुए उन्होंने तेज़ी से तारुफ का मरहला निपटाया तो कारिब ने शनासाई का कोई तासुर नहीं दिया, जिस पर जुनैशा कुछ मुताज्जिब हुई। कुछ सोच कर एकदम मुस्कुराती।
हेलो, नाइस टू मीट यू। एप्रन से हाथ साफ करके कारपेट से उठकर इसके मुकाबिल आ बैठी थी। जवाब में और वफादारी से मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छी बच्ची है, अक्सर दिन में यहाँ आ जाती है। ना सिर्फ मुझे कंपनी देती है बल्कि हेल्प भी करा जाती है। सोफिया बेगम इसे गिलास पकड़ाकर रत्पुल लिसान हो चुकी थी। कारिब ने पुरसकून होकर सोफे की पोस्ट से कमर टिका दी। इसे अपने घर में यूं अचानक पाकर जो एहसास में खुशगवारियत की लहर दौड़ती महसूस हुई थी, इसने इसे सर का दर्द भी भुला दिया था। अब वो कदरे तमानियत से आंखें नीम वा किए से देख रहा था, जो न जाने कैसे नर्वस हो गई थी। तुम दोनों बातें करो जब तक मैं ज़रा किचन में झांक लूँ। मुलाजिम के सर पर ना खड़े रहो तो सब चौपट हो जाता है। मंजर से हट गई थी। यह आमदरफ्त कब से जारी है? जाते ही इसने सवाल किया था तो वो खुद में लौट आई। करीबन 1 माह से। आपने ही तो कहा था ना फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मैंने सोचा पहले घर से तारुफ हासिल किया जाए, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। वैसे मुझे आपकी मम्मी बहुत अच्छी लगी। पहली ही मुलाकात में मेरी तो ठीक ठाक फ्रेंडशिप हो गई थी। कितनी मिलनसार हैं। पता नहीं आप किस पे चले गए। अब वो अपने टोन में बोल रही थी। डैडी से मुलाकात हुई? जवाबन इसने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। वो सर नफ़ी में हिलाते हुए इसे देखने लगी। ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाकर चुप हो गया था। क्या कह रहे हैं? ज़रा खुल कर कहें। बल्कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। ना हक मुझे डरा रखा था अपने घर वालों से। बस करो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मम्मी आती होंगी, क्या सोचेंगी? पहली मुलाकात में ही लड़की इस कदर बेतकल्लुफ़ हो गई है। कसदन इसकी बात काट कर मुबहम सा मुस्कुराया था। सो वाट, इन्हें मालूम है मैं बस ऐसी हूँ। फेयर गेम खेलने वाली आपकी तरह नहीं। बज़ाहिर तो इग्नोर करें और दर पर्दा। अच्छा बस बस, मेरे सर में दर्द था जो कि घर आकर मज़ीद बढ़ गया है। उसके शरारत भरे अंदाज पर इसने कसदन संजीदगी अख्तियार करते हुए आंखें मूंद लीं। जोनी का गुस्से से मुक्का तान लेना इसे नज़र आ गया था। फिर इसके बाद यूँ हुआ कि वो अक्सर शाम को जल्द घर आने लगा। जोनी का यहाँ ठहरने का वक्फा बढ़ता चला गया। सूफिया बेगम बहुत कुछ महसूस कर रही थी। इन्हें वाज़े तौर पर कारिब के मिजाज में वक़ूफ़ पज़ीर हुए तग़य्युर का इदराक हो रहा था, जिसे महसूस करते तमानियत से मुस्कुराती। कारिब उनकी इकलौती औलाद था। इसकी खुशी, इसकी हंसी के लिए उन्होंने तवील सजदों में दुआएं मांगी थीं। बचपन से जवानी तक इसका गैर मामूली मिजाज उनके लिए बाइस तशवीश रहा था। अब ये तशवीश दिन ब दिन कल्बी सुकून में बदलती जा रही थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट का एक अक्स उनके लिए खुशियों के हज़ार दरवा कर जाता। कुछ यही हाल सफ्तर साहब का भी था। इन्हें भी किसी गैर मरी तब्दीली के एहसास ने धीरे धीरे से छुआ था, मगर मुहर्रक और अवामिल खोजने की उनके पास फुर्सत थी ना आदत। सौ गाड़ी इसी तरह चल रही थी। इन्हीं दिनों जब वो बहुत हद तक इस रूटीन का आदी हो चला था, अचानक एक सुबह जुनाइशा फिर मंजर से गायब हो गई। और इस बार कारिब की बेचैनी खुद इसे झुंझला गई। ख्याल आया आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दे, मगर किसी ख्याल से रुक गया। अभी जोनी के फैमिली मेंबर से इसका तारुफ नहीं हुआ था, सो नाचार घर लौटना पड़ा। मम्मी इसे हस्बे मामूल किचन में ही मिल गई थी। जाती उनसे पूछ लिया। अब पहले वाली झिझक नहीं रही थी। यूँ भी मम्मी जानती थी कि इन दोनों के माबैन दोस्ती का रिश्ता इस्तवार हो चुका है। मम्मी, जोनी आज वॉक पर नहीं आई? इससे पहले कि वो इसके इस कदर जल्द आने पर कुछ इस्तफसार करती, इसने सवाल दाग दिया था। मम्मी कुछ हैरान सी रह गई। तो तुम इसके घर जाकर पता करते। मुमकिन है इसकी दादो बीमार हो। कल भी वो इनकी बीमारी का तस्करा कर रही थी, मगर मुझसे इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसकी दादो बीमार हैं तो बताया तो जा सकता है ना। इसका फितरी गुस्सा ऊद आया था। मम्मी ने इसे बगौर देखते मुस्कुराहट दबा ली। तो तुम्हें गुस्सा किस पर आ रहा है? इसके ना बताने पर या दादो के बीमार हो जाने पर? उनका लहजा कदरे शौक था। मम्मी प्लीज़। उनके लहजे पर गौर किया तो खुद झींप गया। अच्छा तुम यूँ करो, 2 मिनट रुको, मैं फ़ोन करके पता करती हूँ। आजकल इसके फादर भी तो पिंडी गए हुए हैं। अकेली बच्ची क्या क्या करे। मम्मी बोलती हुई किचन से निकली तो इसे खुद पर अपनी बेख्तियारी पर ताव आने लगा। क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं हर बार जोनी के मामले में इस कदर टची हो जाता हूँ? मम्मी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? और वो जुनाइशा, इसे तो मौका मिल जाएगा। गहरी सोच समेत वो भी लाउंज में आ गया था। मम्मी फ़ोन पर बिजी थी। वो खामोशी से सोफे पर टिक कर उनके पलटने का मुंतज़िर रहा। थोड़ी देर बाद ही फ़ोन रखकर मुड़ी। मेरा ख़दशा दुरुस्त था। रात को जुनाइशा की दादी की तबीयत बिगड़ गई थी। इस वक्त वो CMH में एडमिट है। ओह, जोनी कहाँ है? उसका लहजा बेख्तियार था। उनके पास थी, इस वक्त घर नाश्ता लेने आई है। कुछ परहेज़ी बनाना था। मम्मी ने इत्तला दी तो उठ खड़ा हुआ।
میرا خیال ہے ہمیں جانا چاہیے، فی الحال تمہارے ڈیڈی کا ناشتہ بنانا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، ڈیڈی سے کہہ دیجیے گا میرا فرینڈ ہاسپٹلائز ہے اس لیے آج آفس نہیں جاؤں گا۔ یک لخت بولا تو ممی محض سر ہلا گئی، جانتی تھی اب وہ رکے گا نہیں۔ صفدر صاحب کو سمجھانے کا کاریہ گراں کرنا تھا، اسے بھیج کر اس نہج پر سوچنے لگی۔ اس نے باہر آ کر اپنی کال نکال لی۔ جب سے ایبٹ آباد آیا تھا اس کی اپنی گاڑی محض جم جانے کے لیے استعمال ہوئی تھی، ورنہ ڈیڈی اسے اپنے ساتھ باندھ کر رکھتے تھے۔ 2 منٹ بعد وہ ترمزی کاٹیج میں داخل ہو رہا تھا۔ سفید گیٹ محض لوہے کے کنڈے سے بند تھا، وہ کھول کر اندر چلایا۔ کاٹیج باہر سے جس قدر خوبصورت تھا، اندر سے کئی گنا حسین تھا، مگر اس کے پاس رک کر اس حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کا وقت نہیں تھا۔ انتہائی خوبصورت ڈیکوریٹڈ لاؤنج میں قدم رکھتے اس کا استقبال میوزک نے کیا تھا۔ پیناسونک کے بڑے سے ساؤنڈ سسٹم پر مناسب آواز بج رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، بائیں جانب کھلے کاؤنٹر والا جدید طرز کا امریکن کچن سامنے تھا، جہاں زنائشہ گھر کے سادہ سے حلیے میں برنر پر رکھے پین کی طرف متوجہ تھی۔ زنائشہ، اس نے بے اختیار اسے پکارا۔ برق کسی تیزی سے پلٹی تھی۔ قاری باپ، یکدم اس کے چہرے پر لاتعداد رنگ کھل اٹھے تھے۔ اس نے محسوس کیا اس کے چہرے کا یہ تاثر محض خوشی کا عکس نہیں تھا، اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور تھا۔ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ابھی ابھی آنٹی کا فون آیا تھا، انہوں نے تو نہیں بتایا۔ برنر آف کر کے ایپرن سے ہاتھ صاف کرتی تیزی سے چلتی یکدم اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ قارب نے اسے اپنی گہری نظروں کے حصار میں لے لیا، جس کے چہرے پر حیرت بھی تھی، کیونکہ اس کے کئی بار اصرار کرنے کے باوجود وہ اس کے گھر نہیں آیا تھا، اور آج اچانک چلا آیا۔ تمہاری دادوں کا سنا، کیا ہوا تھا انہیں؟ اب کیسی ہیں؟ اس کا لہجہ گھمبیر تھا، حالانکہ سوال نارمل تھے۔ یکدم زنائشہ کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ آہستگی سے اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ بس بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا تھا، رات کو ایمرجنسی میں جانا پڑا۔ ہمیں فون نہیں کر سکتی تھی، اتنا فاصلہ بھی نہیں کہ راستے سے پک نہ کر سکو۔ اسے واقعی غصہ آ رہا تھا۔ زنائشہ متعجب سی دوبارہ اس کی طرف گھومی، بغور اسے دیکھا۔ یہ قاری بھی ہے نا، اتنا فکر مند، یقین نہیں آتا۔ اس کے چہرے پر احساسات صاف لکھے نظر آ رہے تھے۔ قارب نظر چرا کیا، آپ ناشتہ کریں گے؟ کچھ دیر بعد وہ بولی، دادو اب کیسی ہیں؟ سوال کے جواب میں سوال ہوا تھا۔ بہتر ہیں، خطرے سے باہر ہیں، اس لیے میں گھر چلی آئی کہ پرہیزی کھانا بنا لوں گی۔ یہاں کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی، اسی لیے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ڈیک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ قارب نے محسوس کیا اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تھی۔ لگتا تھا پچھلی رات بہت اذیت میں گزری تھی۔ اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ تم نے اکیلے ہی اتنا کچھ کیا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ کس رشتے سے؟ اس کی آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں زنائشہ، اتنا تو تمہارا رائٹ بنتا تھا کہ ہم سے مدد لے لیتی۔ وہ یکدم اپنے خول میں سمٹ گیا تھا، سو انداز بھی نارمل ہو گیا۔ زنائشہ نے گہری سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا، پھر یکدم ہی مسکرا دی۔ سوری، غلطی ہو گئی تھی، آئندہ دادوں سے کہہ دوں گی کہ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ہی آپ کو اطلاع کر دیا کریں، تاکہ رات کو آپ سونے کے بجائے ہمارے دروازے پر آ کر پہرا دینا شروع کر دیں۔ اس کی مسکراہٹ میں نمی اور بھیگا پن تھا۔ قارب نے بے چین ہو کر ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ اینی وے، اب ناشتہ کریں یا اپنے ساتھ مجھے بھوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مجھے خواہش نہیں، مگر مجھے ضرورت ہے، اس کے بیزار کن لہجے پر برجستگی سے کہا تھا۔ قارب نے اس کے دل فریب چہرے پر ایک جانچنے والی نظر ڈالی تو وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، دھیرے سے بولی، یوں بھی ضرورتیں ہمیشہ خواہشوں پر غالب آ جاتی ہیں، آپ میرا ساتھ دیں۔ کہہ کر وہ تیزی سے مڑ گئی تھی۔ قارب اسے منع بھی نہ کر سکا۔ در حقیقت وہ اس کے لہجے سے چھلکتے، عیاں ہوتے، کبھی نہا ہوتے جذبوں کو محسوس کرنے کی صحیح کر رہا تھا کہ وہ پرتکلف ناشتہ لیے حاضر تھی۔ ٹرالی اس کے سامنے گھسیٹ کر بعجلت بولی، چلیے جلدی سے شروع کریں، دادوں کو 9 بجے دوا کے ساتھ ناشتہ بھی دینا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ تو میرے ساتھ چلو کی حکمیہ بولا تو زنائشہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زہے نصیب، آپ کے ساتھ چلنا تو عین سعادت ہے۔ آئی ایم ریئلی آنرڈ۔ کہاں جانا ہے؟ وہ اس کے انداز نظر انداز کر گیا تھا۔ زنائشہ کھل کر مسکراتی۔ دادو انہیں جاگتی ہوئی مل گئی تھی۔ قارب کو ان کی شخصیت نے خاصا متاثر کیا۔ انہیں زنائشہ پر بے حد اعتماد تھا، اور اس سے والہانہ بے پناہ پیار بھی، اور اسی اعتماد اور محبت نے اس کی شخصیت میں شگفتگی اور خلوص بھر دیا تھا۔ تمام وقت وہ دادو سے قارب کیے اور اس سے دادو کی تعریفیں کرتی رہی، اور وہ لوگ مسکراتے رہے۔ دادو خاصی باہمت خاتون تھی، بیماری کو بھلائے ان سے مخاطب رہی۔
कारिब को इनकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी की वाज़ेह चमक नज़र आ गई थी, ख़ास तौर पर जब वो जाने के लिए उठा तो दरवाजे तक जुनाइशा इसे छोड़ने आई थी। इन दोनों को पहलू ब पहलू खड़ा देखकर उन्होंने जिस खुशी भरी तमानियत से आंखें मूंदी थीं वो इग्नोर ना कर सका। शाम को घर जाओ कि बाहर निकलकर इसने पूछा था। जी, तो इंतज़ार करना, मैं आऊँगा तुम्हें लेने। सोच लीजिए वादा पूरा कर भी सकेंगे या नहीं, कहीं मैं मुंतज़िर ही ना रह जाऊँ। ज़ुनाइशा का लहजा मायने खेज़ी की तरह माइल था। कारिब ने यकदम नर्वस कर देने वाले अंदाज में से देखा तो सर झुकाकर होंठ काटने लगी। शाम को 6 बजे वापसी पर मैं तुम्हें पिक करूँगा, तैयार रहना। ओके, कहकर पलटने में देर ना लगाई। ये कारिब सारा दिन कहाँ गायब रहने लगा है। दादों के वापस घर आ जाने के बाद कभी कभी शाम को भी उस तरफ जाने लगा। दोपहर में अक्सर सोफिया बेगम भी चक्कर लगा लिया करती थी कि अब तक ज़ुनाइशा के वालिद तिरमिज़ी साहब वापस ना लौटे थे। यहीं तो होता है सफ्तर साहब। सोफिया बेगम चकरा कर रह गई इस अचानक तफ्तीश पर। यहीं कहाँ होता है? क्या सुलेमानी टोपी पहन रखी है आपके साहबजादे ने, जो मुझे ही नज़र नहीं आते? अखबार एक तरफ पटक कर वो चिराग पा हो गए थे। सफ़िया बेगम घबरा सी गई। सुबह वक्त का वक्फा बढ़ गया है। पिछले दिनों ऑफिस से भी जल्दी निकल जाता था, अब शाम को गायब रहने लगा है। आखिर मालूम तो हो मौसूफ कौन सा गुल खिलाने वाले हैं। उनका शररबार लहजा समातों पर बोझ बन रहा था। सोफिया बेगम ने सूखे गले को तर्क करके हिम्मत की। जिम में कुछ नए दोस्त बने हैं, मुमकिन है उनकी तरफ चला जाता हूँ। जिम की आपने खूब ही कही सोफिया बेगम। कसरत के नाम पर वक्त और पैसा ज़ाया करने वाले लफंगों को आप दोस्त कहती हैं। बाप का पैसा है, जहाँ दिल चाह रहा है उड़ा रहे हैं। अपनी मेहनत से कमाई करते तो एक डंबल तक ख़रीदने की इस्तात नहीं होती। वो मज़ीद जलाल में आ गए थे। आप हर बार ये बात मत कहा करें सफ्तर। क्या मालूम मैं और आप इसके नसीब का खा रहे हों। कमाने वाले को अपनी कमाई का गरोल नहीं करना चाहिए। फिर वो भी तो आपके साथ जाता है। डलते डलते वो कह गई थी। सफ्तर साहब का बफल जाना यकीनी था। हाँ, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं आपके सपूत। अरे इतना कम काम अगर कोई मेरा मुलाजिम करता, मैं इसे नौकरी से निकाल देता। हाँ, काम करते हैं, एक उन्हीं का नसीब लिखा है लिखने वाले ने। क्या कारिब की पैदाइश से पहले हम भूखे मरते थे? अरे जब लाखों का कारोबार था सफ्तर जद्दून का, उनके तो तलवों से लगी थी, सर पे जाके बुझी। सूफिया बेगम तो बोलकर पछता गई और वह गरूर तनतने के बाइस काफ़ी देर तक बड़बड़ाते रहे। कारिब घर वापस आया तो माहौल में कशीदगी सफ्तर साहब के चेहरे से साफ पड़ ही जा रही थी। इसने सवालिया नज़रों से माँ की तरफ देखा। तुम शाम को ज़रा जल्दी लौट आया करो बेटा, तुम्हारे डैडी को। प्लीज़ मम्मी, डैडी की पसंद नापसंद मेरे हवासों पर सवार मत करें। ये ज़िंदगी मेरी भी है, इसे अपनी खुशी से गुजारने का मुझे कुछ हक है कि नहीं? या सारी उम्र मुझे डैडी का बेटा होने का खराज देते रहना होगा? वो इन्हें टोक कर मतानत से बोला तो सूफिया बेगम इसकी शक्ल देखती रह गई। कराची से सलमान का फ़ोन आया। इसका रिज़ल्ट आउट हो गया था। फर्स्ट डिवीज़न से MBA क्लियर किया था इसने। इसकी ये कामयाबी सफ्तर साहब तक को खुश कर गई। काफ़ी अरसे बाद उन्होंने इससे ढंग से बात की थी। लाशौरी तौर पर यह खुशी इसकी कामयाबी की मुसर्रत पर गालिब आ गई थी। मम्मी ने ज़बरदस्त गिफ्ट दिया था इसे, साथ ही सफ्तर साहब ने काफ़ी कैश थमा दिया था। काफ़ी अरसे बाद वो अपने घर में खुलकर हंसा था। कुछ वक्त अच्छा गुजार कर वो बाहर आ गया। कदम बहुत तेज़ी से तिरमिज़ी कॉटेज की तरफ उठे थे, मगर वहाँ पहुंचकर इसे मायूसी हुई। तिरमिज़ी साहब वापस आ चुके थे। मुलाजिम इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। वो कोफ्त के आलम में इधर उधर देख रहा था कि वो चली आई, जिसके आने की इसे उम्मीद ना रही थी। तिरमिज़ी साहब की मौजूदगी में शायद वो इसे मिल ना सके, मगर वो सामने थी और जिस रूप में थी इसके लिए किसी इम्तहान से कम ना था। हार्ट रेड जर्सी, वेलवेट के कोरे के नाजुक काम वाले शलवार सूट पर 3 गज का हम रंग दुपट्टा लिए, कुंदनी झुमके और गुलोबंद पहने, मुनासिब मेकअप में वो इस ज़ुनाइशा से बेहद मुख्तलिफ लग रही थी, जिसे वो रोज़ टॉम बॉय बने देखता था। सफ़ेद पाँव में तिल्ले के काम वाला सुर्ख खुस्सा खूबसूरत लग रहा था। मुबारकबाद। इसकी सहर तराज निगाहों के इर्तकास पर बुरी तरह नर्वस हो गई थी। थैंक्स बट फॉर व्हाट? वो वाकई हैरान हुआ। अभी आंटी ने फ़ोन पर बताया आपका रिज़ल्ट आउट हो गया। अब तक इसकी नज़रों के फोकस में थी, इसलिए अंगूठियों वाले हाथ आपस में रगड़ते हुए बोल रही थी। ओह! वो मम्मी की बर्क रफ्तार कम्युनिकेशन पर मुस्कुरा दिया। गहरी सांस डालते हुए बोला, क्या ये सिंगार इसी खुशी में है?
بڑا گھمبیر دل کے تاروں کو چھیڑ دینے والا لہجہ تھا جس میں شرارت بھی تھی۔ جی نہیں، میری فرینڈ کی شادی ہے آج۔ میں وہاں جا رہی تھی کہ رک گئی۔ پاپا آ گئے ہیں، وہی لے کر جانے والے تھے مجھے۔ حسب توقع چڑ گئی تھی، کہا لگا کر ہنس پڑا۔ تو اب کہاں گئے وہ؟ آنٹی کا فون آیا تو میں نے انہیں منع کر دیا، سو وہ انکل رؤف کے پاس بلیٹ کھیلنے چلے گئے۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو وہ اپنی اہمیت پر تفاخر سے مسکرا دیا۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، میں نے پاپا سے یہی کہا تھا کہ میری ایک فرینڈ مجھے آ کر پک کر لے گی، سو اب آپ مجھے لے کر چلیں۔ اس نے چڑھانے کو کہہ کر فرمائش داغ دی۔ جی نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں، دوسروں میں اپنے والدین سے جھوٹ بولنے والیوں کے ساتھ آنا جانا کچھ ایسا پسند بھی نہیں کرتا۔ قارب کچھ زیادہ ہی خوش تھا، آج نظریں بار بار بہک کر اس جامع زیب کی طرف اٹھ رہی تھیں جس کے وجود سے اٹھتی فینڈی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس کا جملہ تھا ہی ایسا، زنائشہ کا چہرہ خفت احساس توہین سے سرخ پڑ گیا۔ لب کاٹتے ہوئے اس نے ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، یکدم اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس اثنا میں الرٹ ہو چکا تھا، سو اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے اس نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ راستہ چھوڑیں پلیز۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ قارب کی خاطر اس نے پاپا سے جھوٹ بولا تھا، اور یہ سچ ہے کہ پہلی بار بولا تھا، سو اس کا اس طرح سے کہنا غضب ڈھا گیا تھا۔ اسے احساس تھا، اسی لیے قریب چلا آیا۔ پہلے اس بات کا یقین دلاؤ کہ ناراض نہیں ہوں۔ وہ سر پہ سوار ہوا تھا۔ زنائشہ کی خود اعتمادی ساری کی ساری اڑن چھو ہو چکی تھی۔ میں خفا نہیں ہوں، اس کے لرزتے ہونٹوں سے بمشکل نکلا۔ تو نظر ملا کر بات کرو۔ قارب کے بدلتے انداز، گہرے جملے، گھمبیر لہجہ اور بھاری آواز اس کے حواس اڑائے دے رہی تھی۔ پلیز، میں پزل ہو رہی ہوں، معصومیت سے کہہ گئی۔ اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر ذرا فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ چلو جاؤ، معاف کیا، ایک کپ کافی پلاؤ، پھر چلتے ہیں جہاں تمہیں جانا ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح ٹھنک گئی تھی۔ کافی لا کر اسے تھماتے بولی، سوچ لو۔ جواباً وہ مسکرا کر اسے شوق نظروں سے دیکھنے لگا تو اس کے چہرے کا رنگ سوٹ کے رنگ سے مقابلہ کرنے لگا، اور وہ کافی کا سپ لینا بھول کر یک ٹک اسے دیکھے گیا، جو ہلکے ہلکے مسکراتی ملکوتی حسن و سادگی سے اس کا پورا وجود مسخر کر گئی تھی۔ میں ایبٹ جا رہی ہوں۔ اگلے ہفتے اس نے صبح واک پر نکلتے اسے اطلاع دی تو اس کے قدم زمین نے یوں جکڑے گویا میخوں سے ٹھوک دیے گئے ہوں۔ کیوں؟ چہرے پر ناگواری کا پتھریلا تاثر ابھر آیا۔ زنائشہ نے بغور اسے دیکھا تھا، لاشعوری طور پر اس کے اس رد عمل پر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ بس آگے اسٹڈی کرنا ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ خیال اچانک کیسے آ گیا تمہیں؟ لہجے میں غصہ تھا۔ آپ کی وجہ سے، رسانیت سے کہہ کر اسے دیکھا، جو اس کے اس جواب پر بھونچکا سے رہ گیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ کی وجہ سے۔ آپ کی کوالیفیکیشن دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ شاید آپ نے محسوس بھی نہ کیا ہو کہ میں ہمیشہ آپ سے ایک قدم پیچھے چلتی ہوں، محض اسی احساس کی وجہ سے۔ عجیب و غریب احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ قارب کے سنجیدہ چہرے پر اس کی بات کے باعث ایسی مسکراہٹ در آئی جیسے کسی بچے کی شرارت پر ہنسی آ جاتی ہے۔ تو کیا تم مجھ سے ایک قدم آگے چلنا چاہتی ہو؟ ہنس کر سوال کیا۔ نہیں، آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتی ہوں، بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہہ کر اس نے قارب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تھیں۔ قارب کو آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ سب لکھا نظر آ گیا جسے وہ ہمیشہ سے نظر انداز کرتا رہا تھا۔ عجیب بات تھی، آج زنائشہ بھی نروس نہیں ہوئی، بلکہ قارب کے یکدم لب بھینچ لینے پر وہ آزردہ ہو گئی تھی۔ گزشتہ کئی بار کی طرح اس دفعہ بھی وہ اظہار کے لمحات ہاتھ سے نکل جانے دے رہا تھا۔ زنائشہ چند لمحوں بعد خود ہی تھک کر بولی، مجھے جانا ہی ہوگا، ممکن ہے جب تک میں کچھ بن کر واپس آؤں آپ یہاں سے جا چکے ہوں۔ زخمی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سیریس ہو گیا، سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا، تو گویا تمہیں میرے جانے کا بھی پتہ چل گیا ہے؟ آنٹی نے بتایا تھا، بہت اچھے ادارے سے ایڈمن آفیسر کی پوسٹ آفر ہوئی ہے آپ کو۔ کراچی جائیں گے، اس کے پزمولدہ لہجے میں آخری جملہ بھیگا بھیگا سا لگا۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ پہلے خیال تھا کہ کراچی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں گی، مگر اب سوچتی ہوں اسلام آباد ٹھیک رہے گا۔ ماما کے پاس بھی آتی جاتی رہوں گی پنڈی، کراچی میں بھلا کون ہے؟ وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش میں رخ موڑ گئی تھی۔ قارب کے رویے نے اسے اندر تک چیر دیا تھا۔ تمہارا فیصلہ بہتر ہے، پھر اسلام آباد سے یہاں آنا بھی آسان ہوگا دادوں کے پاس۔
चलो इसी खुशी में आज शाम मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेकर चलूँगा, वो रसानियत से बोला। नवा शहर की इलियास मस्जिद मुझे बेहद पसंद है। सफ़ेद पुल नूर पानी पर बनी ये मस्जिद मुझे अपनी मुनफरिद आर्किटेक्चर की वजह से अच्छी लगती है। इसने आगे की तरफ कदम बढ़ाते प्रोग्राम तरतीब दिया था। इसी लम्हे से एहसास हुआ कि इसके साथ चलता वजूद कहीं थम गया था। वो तेज़ी से मुड़ा। इस वक्त तक हाथों में चेहरा छुपाकर ज़ुनाइशा वापस पलटकर भागती चली गई थी। किसी एहसास की गिरफ्त में आते हुए इसने लब भींच कर इसे जाते हुए देखा था। इसके जाने के सिलसिले में घर में थोड़ी सी टेंशन थी। इसे मालूम था कि मम्मी इसे दोबारा खुद से दूर करना नहीं चाहती, मगर वो कस्तन अनजान बन गया था कि डैडी के तानों से निजात हासिल करने का यही एक तरीका था कि अपने बलबूते पर कुछ बनकर दिखाया जाए। सो वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। सूफिया बेगम बुझे दिल से इसके जाने की तैयारियां कर रही थी, जबकि सफ्दर साहब चुप थे। उनकी खामोशी से अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो खुश हैं या नाराज़। ज़ुनाइशा मंजर से गायब थी और इसकी कमी वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही थी। उस रोज़ मम्मी ने इसे पकड़ लिया कि इस ज़ुमन में इसकी खामोशी खासली गौर तलब थी। ज़ूनी कहाँ है आजकल कारिब? इधर आती ही नहीं। तुमसे कोई झगड़ा हुआ है इसका? नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुमकिन है अपने एडमिशन के सिलसिले में गई हो। इसने कुछ ज़रूरी सामान की पैकिंग करते नज़र चुरा ली थी। कहाँ? इस्लामाबाद। आपको बताया नहीं इसने? पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रही है। अच्छा। वो खासी हैरान हुई। मुझसे तो तस्करा किया नहीं इसने। उन्होंने कहा तो खामोश ही रहा। अभी 2 दिन पहले का इसका रद्द-ए-अमल याद आ गया था। बददिल होकर वो काम अधूरा छोड़ते उठ खड़ा हुआ। मैं ज़रा बाहर का चक्कर लगाऊं, पता नहीं क्यों यहाँ हब्स महसूस हो रहा है। सूफिया बेगम ने कुछ ताज्जुब से इसे देखा था। दिल में अजीब से बेचैनी भर गई थी। सड़कों की खाक छान कर शाम गए लौटा तो मम्मी के पास बैठी इसके सामान की पैकिंग में हाथ बटाती नजर आई। थकी थकी सी पजमर्दा सी ज़ुनाइशा तरमज़ी इस जोनी से बेहद मुख्तलिफ लग रही थी, जो इसे चंद दिन पहले रेड लिबास में मलबूस शगुफ्ता निखरी हुई नज़र आई थी। बस आंटी, पापा ने एडमिशन तो करा दिया है, अगले हफ्ते तक चली जाऊंगी। इतनी जल्दी? ओकब से आते हुए इसने गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। ज़ुनाइशा ने रुख मोड़कर इसे देखा। इसकी गहरी आंखों में गहरे जज्बे करवटें ले रहे थे। कारिब जद्दों ने दोबारा नज़र न डाली इस पर। क्या अब भी न जाती मैं? जी। इसने निगाह झुका ली थी। कारिब की भी परसों की फ़्लाइट है, कल का कोई प्रोग्राम रख लो तुम लोग। सूफिया बेगम ने इन दोनों के माबैन बोलती खामोशी महसूस ही न की थी। इत्मीनान से मशवरा दिया। इलियास मस्जिद चलते हैं, नवा शहर। गई हो कभी? मम्मी के करीब टिकते हुए अब इसके मुकाबिल था। इसने सर नफ़ी में हिलाया। कभी इत्तफाक नहीं हुआ तो फिर मेरे साथ चलना। सूफिया बेगम फ़ोन की बेल पर उठ गई तो इसने आहिस्तगी से कहा, शायद अभी ना जा सकूं, छुट्टियों में आऊँगी तो देख लूँगी। इसने नज़र झुकाए झुकाए ही कहा था। हाथ हनूज़ मसरूफ़ थे। मेरे साथ जाने में क्या हर्ज है? झुंझलाहट यकदम इसके चेहरे से झलकी थी। ज़ुनाइशा ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा, फिर ये कहती उठ गई, हर्ज तो आपके साथ ना जाने में भी नहीं है। यूँ भी मेरे होने ना होने से फ़र्क क्या पड़ता है? कारिब अपनी जगह बैठा रह गया था और वो ये कहकर मम्मी से इजाज़त लेने चलती। वो क्या कहता कि इस वक्त ज़ुनाइशा के रवैये ने इसके अंदर जलाल का समंदर मुजस्सम कर दिया था। डायरी स्याह लफ्ज़ों से भरती जा रही थी और तेज़ी से गुजरती रात इसके दिल पर किसी भारी बोझ की तरह पड़ी थी। बेबसी सी ना वो वक्त का तेज़ी से चलता पहिया रोक सकती थी और ना ही जाने वाले पर इतना इख्तियार था कि इसके बढ़ते कदम मुंजमद कर देती। दादों के सीने से लगकर इसने अपने बकिया आंसू भी बहा दिए। दिल का दर्द हनूज़ अपनी जगह कायम था। दूसरे दिन कारिब की फ़्लाइट थी। वह सुबह ही सुबह खड़े खड़े से मिलने आई थी। मेरे साथ बस स्टैंड तक नहीं चलोगी? वो पूछ रहा था। बस से इस्लामाबाद जाना था, जहाँ से इसे फ़्लाइट पकड़नी थी। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। यूँ भी परसों मुझे खुद जाना है, कुछ ना कुछ तो पैकिंग करनी होगी। उंगलियां चटखाते हुए इसने साफ इनकार कर दिया। चली जाओ बेटा, तुम्हारी दादों से मैं परमिशन ले लूँगी। सूफिया बेगम ने मोहब्बत से कहा तो इसकी पलकें भीगने लगीं। खुदा हाफिज़ ही तो कहना है आंटी, यहाँ से कहूँ या वहाँ जाकर एक ही बात है। इसके लहजे में महसूस की जाने वाली आज़ुर्दगी थी। सूफिया बेगम खामोश हो गई। इसके जाती कारिब की तरफ मुड़ी थी, जो इस वक्त लब भींचे इसे जाता देख रहा था। मुझे लगता है तुमने ज़ुनाइशा को किसी बात पर हर्ट किया है कारिब। बिला तमहीद वो कह उठी थी। कारिब ने हैरत से उनकी तरफ देखा, सर झटक कर बोला, बेवकूफ़ है वो, आप ज़्यादा तरद्दुद मत करें, ठीक हो जाएगी।
अभी इसे प्रैक्टिकल बनने के लिए कुछ वक्त दरकार है, इत्मीनान से कहकर चलता बना। मगर सूफिया बेगम का जहन एक ही जगह अटक गया था। गुज़र तो जाएगी तेरे बग़ैर भी, लेकिन बहुत उदास, बहुत बेकरार गुज़रेगी। एबटाबाद से जाते बहुत दुखी थी। यहीं पहली बार वो कारिब से मिली थी। ये शहर, इसकी फ़ज़ाएँ सब गवाह थीं इसके जज्बों की, और इन सब को छोड़कर इसे जाना था। जिस शाम इसे जाना था, इस सुबह सूफिया बेगम इससे मिलने आई थी, और ये सुनकर तो जैसे वो साकित ही रह गईं कि वो इसके लिए कारिब का प्रपोज़ल लाई थी। वो सामने ही बैठी थी, यकटक उन्हें देखे गई। दादों ने सूफिया बेगम का मुद्दा सुनकर बेख्तियार इसकी तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर अंदरूनी जंग के आसार साफ नज़र आ रहे थे। यकदम वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और जो कुछ इसने कहा माहौल को साकिन कर किया। आपकी इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया आंटी, मगर मैं शायद इस काबिल नहीं कि आपकी बेटी बन सकती। कारिब के दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं, और मैं किसी ऐसे शख्स के आसाब पर सवाल नहीं होना चाहती जिसे मेरी ज़ात से दिलचस्पी न हो। इसका लहजा दो टोक और ज़ख्मी ज़ख्मी सा था। सूफिया बेगम भौंचक्का सी रह गई। मगर बेटा, मैंने तो बारहा तुम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग, और वो सब महज नज़र का धोखा था आंटी। अब इस ट्रांस से मैं बाहर आ चुकी हूँ, आप भी आ जाइए। उनकी बात का तय करते हुए इसने बामुश्किल अपने आंसुओं पर बंद बांध कर रखा था, और फिर ये सब कहकर रुकी नहीं। इन दोनों को साकित सा छोड़कर कमरे से निकले। फिर इसे नहीं मालूम सूफिया बेगम कब वापस गईं, दादों ने किस तरह उनसे माजरत की। जाने के वक्त तक वो कमरे में बंद रही थी, और इस वक्त निकली जब पापा ने आकर शोर मचाया। सफ़र ज़िंदगी की तरह बेकैफ ही रहा। इसे ना मनाजिर से दिलचस्पी रही, ना किसी हुस्न से। सारा रास्ता माजी के औराक पलटते ही गुजरा, और इसे पता ही ना चला कब वो इस्लामाबाद पहुंच गई। अपना सफरी बैग उठाकर सुस्त कदमों से जिस वक्त वो उतरी, आंखों में धुंध सी छा गई। तो गोया ज़िंदगी का एक चैप्टर क्लोज हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। नमी इसके रुखसारों पर उतर आई थी, बिना बताए, इंतहाई खामोशी से। मेरा ख़्याल है आंसू बहाने के लिए ये जगह सख्त नामौजू है मिस ज़ुनैशा। ये आवाज़ किस कदर शनासा थी। बहुत करीब से उभरी, उछल ही पड़ी। घूम कर देखा, सामने सीने पर बाजू लपेटे कारिब शगुफ्ता सी शरीर से मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। इसने पलकें झपकी। आप यहाँ? कराची नहीं गए अब तक? इसकी आंखें हैरत से मज़ीद कुशादा हो गई थी। कारिब हंस पड़ा। जाना तो था, यहाँ किसी का इंतज़ार करने के लिए रुक गया। किसका? इसका अंदाज़ बेसाख्ता था। कारिब की मायने खेज़ मुस्कुराहट इसे खज्जल से कर गई। यहाँ ठंड काफ़ी है, मेरा ख़्याल है गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। वो इसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले आया था। ज़ुनैशा ने हैरत तफक्कुर से इधर उधर नज़र दौड़ाई। इसे घर से लेने कोई नहीं आया था? डोंट वरी, अंकल से बाकायदा परमिशन ली है तुम्हें साथ ले जाने की, इसीलिए तुम्हारे भैया नहीं आए हैं। बैठकर इत्मीनान से इसकी तरफ रुख मोड़ते हुए वो बोला था। ज़ुनैशा हैरत के दूसरे झटके से दो चार हुई। क्या मतलब? कहाँ से शुरू करूँ? चलो उस दिन से बताता, जिस रोज़ तो मुझे पहली बार अपने कॉटेज के बाहर बैठी नज़र आई थी। इसके घबराए हुए अंदाज़ पर कारिब ने कुछ सोचते हुए जहन में लफ्ज़ों को तरतीब दिया था। ज़ुनैशा साकित बैठी इसे सुन रही थी। सच है, उसी दिन से मेरे दिल ने तुम्हें अपना मान लिया था, इसीलिए जब तुम मेरी तरफ बढ़ी तो मैं तुम्हें रोक सका ना खुद को समझा सका। बात सिर्फ इतनी सी थी कि जिस कदर तुम मेरे नज़दीक आती जा रही थी, मेरे अंदर रद्द-ए-अमल पैदा हो रहा था। मेरा दिल चाहता तुम्हें रोक दूं, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारे ख्वाबों को चकनाचूर करने का सबब बन जाऊं। और अकलौती औलाद होने की पादाश में मेरी ज़ात से मुंसलिक हर फैसला मम्मी डैडी ही करते थे। जब तुमने मुझे फ्रेंडशिप ऑफ़र की तो पहली बार मना करने के बावजूद मैं तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया। वो धीरे धीरे बता रहा था, और ज़ुनैशा इस्तजाब से आंखें खोले उसकी तरफ मुतवज्जा थी। तुम चाहती थी मैं इजहार करूं, और मैं कुछ अपनी फितरत और मिजाज के बाइस और कुछ मम्मी डैडी के फ़ैसलों की स्लेब उठाने के ख्याल से खाइफ रहा। हत्ता कि मुझे इस्लामाबाद में जॉब मिल गई। इसने कहा तो वो इस्लामाबाद के नाम पर चौंकी, जिस पर कारिब मुस्कुरा दिया। हाँ, मुझे यहीं जॉब मिली थी। मैं तो महज तुम्हें आजमा रहा था। जिस रोज़ तुमने स्टडी की बात की, न जाने क्यों दिल चाहा वो इजहार जो मैं नहीं कर सका तुम्हारे चेहरे पर इसे खिलता देखूं। सो मैंने यूं ही कह दिया कि कराची जा रहा हूँ। इसके बाद जिस तरह तुमने मुझे इग्नोर किया मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, और इसी वजह से मैंने मम्मी डैडी से तुम्हारे बारे में बात की। एक और इंकशाफ, वो बुरी तरह चकरा गई।
और इस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब डैडी बिना तरद्दुद मान गए। शायद तुम्हारी आमद और मम्मी की ब्रेन वॉशिंग ने इन्हें राज़ी कर लिया था। वो कहकर हंस पड़ा। ये शायद वो बहुत कुछ जान गए थे। मम्मी ने मेरे बिना कहे तुम्हारी ज़ात में मेरी इन्वॉल्वमेंट फ़ील कर ली थी। मेरी आंखें मेरे जज्बों की गवाह थीं, मगर तुम्हारी आंखों पर तो जैसे बेअक्ली की पट्टी बन गई थी। तुम हकीकत ना जान सकी, मम्मी के सामने डायरेक्ट इनकार कर दिया। अब कि इसने कदरे गुस्से का तासुर दिया था। ज़ुनाइशा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। अपनी हिमाकत पे इसके पल के मन और बोझ तले दब गई थी। स्टूपिड लड़की, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मम्मी ने किस कदर सख्त सुस्त सुनाई है मुझे। इसी गलती की सज़ा के तौर पर उन्होंने तुम्हें मुझसे मंसूब कर दिया है। यह आखिरी झटका था जो इसे ज़मीन से आसमान के दरमियान मुअल्लक़ कर गया। हैरत, खुशी, बेयकीनी, बहुत कुछ यकदम इसके चेहरे पर आ रुका। क्या? यकीन ना आए तो ये लो अपने घर फ़ोन करो, सब पता चल जाएगा। इसकी तरह मोबाइल फ़ोन बढ़ाया तो झुंझला गई। क्या आप सच कह रहे हैं कारिब? वो अब तक हैरान थी, इससे ही यकीन हासिल करना चाहती थी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाने आया था यहाँ। इसे इसके रद्द अमल पर हंसी आ रही थी। यकदम चुप होकर इसे देखने लगी थी। हेलो हेलो, क्या मस्मराइज़ हो गई हो? तुम जाग रही हो? कोई ख्वाब नहीं देख रही? यकीन ना आए तो ये लो। इसे गहरी नज़र से देखकर इसने कहा, फिर यकदम इसका हाथ अपनी मुट्ठी में लिया तो करंट खाकर पीछे हटी, साथ ही हाथ भी छुड़ा लिया। अब आया होश मैडम को, कारिब ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहकर कार स्टार्ट की तो बुरी तरह झेंप गई। चलो ये भी शुक्र हुआ कि तुम थोड़ा शर्माई तो, वरना मैं यही समझा था अब कोई भारी पत्थर ही लटकाना पड़ेगा तुम्हारे सर से ताकि थोड़ा झुके। कारिब का अंदाज़ खुशगवारियत से भरपूर था। ज़ुनाइशा झेंपने के बावजूद खिलखिलाकर हंस पड़ी। थैंक यू कारिब, इसलिए नहीं कि आपने मुझे चुन लिया है, बल्कि इसलिए आपने वो सब कह दिया जो मैं सुनना चाहती थी। वरना मुमकिन है हम सारी ज़िंदगी साथ रहते, मगर इजहार की कमी हमारे जज्बों की कोमल बेलों को मुरझा देती। लफ्ज़ इसके लबों से यूँ निकले जैसे ख़ुद कलामी की हो, मगर कारिब के दिल तक इसकी आवाज़ पहुँच गई थी। अगर कह दो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो पलकों के किनारों पे हसीन कुछ ख्वाब टिक जाएं, हमारी रोती आँखों के सारे अश्क रुक जाएं, घटाएं रंजो गम की दिल के आंगन से सरक जाएं। अगर कह दो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ये खूबसूरत सा नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से आऊँगी ऐसे ही किसी खूबसूरत से नावल को लेकर। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।